of CRC of ICI. Welcome you all present here on the today's webinar on GST annual return for 1819 listed development in GST by Gautam Budh Nagar branch of CAIRC of ICI. Now it's time to begin webinar, and this is let me introduce and welcome of our panelists. CS Sikha Singhal ma'am, Executive Committee member, Gautam Budh Nagar branch. I welcome to CA Girish Narang sir, immediate past chairman and executive committee member of Gautam Budh Nagar branch. CA Dinesh Chandra sir, Sikasa chairman of Gautam Budh Nagar branch. CA Chaman Singh ji, vice chairman of Gautam Budh Nagar branch. CA Tanuj Garg sir, chairman of the Gautam Budh Nagar branch. And now CA Atul Agarwal sir, our Sikasa chairman of CIRC of ICI and our regional council member of CIRC of ICI. And now finally I introduce our guest speaker, CA Navya Malhotra ji. Thank you, sir, all of you for joining us on this webinar. Now I request our branch chairman, CA Tanuj Garg sir, for his welcome address. Welcome to our. Thank you, Dilip ji. First of all, I welcomes to all of you in this virtual city meeting on GST audit and annual returns of 1819, including latest development in GST. और जहाँ कहीं GST का नाम आता है तो हमारे स्पीकर नव्या मल्होत्रा जी का ही नाम हमारे दिमाग में हमेशा घूमता है, और उन्हीं के साथ में हम लोग बिल्कुल वो सारी प्रॉब्लम्स को हमारे को सॉल्व करते हैं। और मैं इसमें अपनी पूरी कमेटी को वेलकम करता हूं, और हमारे अतुल अग्रवाल जी, सिकासा चेयरमैन ऑफ द CIRC ऑफ ICI, मैं उनका बहुत नव्या मल्होत्रा जी का बहुत स्वागत करता हूं और कामना करता हूं मीटिंग कर रहे हैं जल्दी हम इस कोविड की सिचुएशन से बाहर आए, और बाहर आके जिस तरह से हम पहले गले मिला करते थे और गले मिल करके हम अपनी प्रोग्राम्स किया करते थे वो फिर से स्टार्ट कर पाए। I hand over charge to the MOC, Dilip ji. Thank you, Tanu sir. Now to proceed further, I request our regional council Sikasa chairman, C. Atul Agarwal sir, to share his word of wisdom. Please, sir. Thank you for giving me the opportunity. I am really thankful to Gautam Budh Nagar branch for inviting me in all virtual CP meeting. First of all, I would like to thank all attendees who are present here for attending the virtual CP meeting, which is being organized by Gautam Budh Nagar branch, especially on integracies in GST audit and annual return for the year 1819. And for that, with the latest development. And for that, we have a wonderful speaker, CA Navya Malhotra, who is one of the youngest speaker and having command on the subject. And the way he explained the subject is really wonderful and in a very easy manner. I have attended so many sessions of Navya ji, and I never found while he's explaining the members who are attending or the attendees are facing any kind of difficulty. They understand the subject in a very easy manner, and later on every time they ask for, sir, if there is any query, we would like to connect with Navya Malhotra ji. So this kind of popularity Navya ji is having in Gautam Budh Nagar and in NCR, and not only in NCR and Gautam Budh Nagar, otherwise also. I'm sure lots of amendments have taken place, lots of doubts are there. Either you talk about the annual return or you talk about other amendments in GST, like there were certain notifications which were issued by the department on 24th of July, that 5th of July, again there was June. There was another clarification, and the last clarification, I think, which was in the late night on 30th of June. So because of these notifications and clarifications, yes, at times in the mind of the members, lots of confusion arises, especially the notification which was issued by the government on 24th of June regarding the applicability of interest in the late payment of GST, especially in the month of March, April and May. So these are the issues which are again the issues need the clarification, and I am sure in today's deliberation, Navya ji is going to explain each and everything in
very simple manner, and it would be easy for each one of us to understand. So without taking much of the time, I hand over the charge to the MOC for proceeding further for the today's session. Thank you very much once again, and over to MOC for the next session. Thank you, sir. Thank you for your nice words, sir. And now it's time to request to our guest speaker, CA Abhay Malhotra ji, for the today topic on GST audit and annual returns of 1819, including latest development in GST. Sir, please, I welcome to Nabha sir. Please come and say your views. Very good afternoon to all of you. नमस्कार आप सबको. अतुल जी, तनु जी, दिलीप जी, दिनेश जी, शिखा जी, गिरीश जी स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, बट गिरीश जी को भी, और एवरी मेंबर हु हैव जॉइंड टुडे. आई बिलीव जीएसटी ने एक चीज हमें सबको सिखा दी है कि छुट्टी भी छुट्टी नहीं होती, सीए पे भी गिफ्ट मिलता है, और समय कोई नहीं है काम करने का. सबसे बड़ी बात यह है. सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अतुल जी ने कहा कि देखिए नोटिफिकेशन आई, ये चीज क्या कहते हैं, रातों रात नोटिफिकेशन आ जाती है, रातों रात क्लैरिफिकेशन आ जाती है जीएसटी में. और द मोस्ट वंडरफुल पार्ट इज कि सर जब नोटिफिकेशन आती है या क्लैरिफिकेशन आती है, तो आप कभी भी नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन को निकाल कर सोचें कि मैं उसको प्रिंट करूं और उसको समझ जाऊं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर पिछली नोटिफिकेशन, पिछली के अंदर पिछली, और उससे पिछली के अंदर पिछली. तो आपको समझने के लिए पहले 500 नोटिफिकेशन चाहिए, और जैसे ही 500 नोटिफिकेशन आपके हाथ में आएंगी तब आपको समझ आएगा कि यार मुझे करना क्या था. तो द थिंग्स बिकम वेरी मच cumbersome और डिफिकल्ट इन दिस केस. तो इफ पार्टिसिपेंट्स, एज पर द पार्टिसिपेंट्स से, आई बिलीव, मुझे तनु जी एक चीज बताएंगे, क्या मुझे चैट बॉक्स विजिबल होगा, या मतलब पीपल कैन राइट इट हियर? Yes, sir. People can write there, and they can also leave question answers in the question answers column. Okay. So there are two columns you can see on the right side. One is chat, one is Q&A. Okay. So let us believe कि everyone can write it in the chat box, and let us keep everything in one place only in the chat box for now. क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दोनों चीजें देखना for now. तो in the last when I keep the question and answer session, तो वहां पर देख लेंगे कि question answer session में क्या है. So I request everyone to keep interacting, keep chatting. गिरीश सर दिख गए हैं हमें, तो अब वेलकम गिरीश सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सर सब चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे सर. सो इफ पीपल राइट इन चैट बॉक्स, इट बिकम्स अ टू वे इंटरेक्शन, और कहीं भी कमी महसूस नहीं होगी कि हम बैठे हैं सामने, वो फिजिकल सेमिनार ले रहे हैं या घर बैठ के सेमिनार ले रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं. So it will be a wonderful journey, and throughout हम 1.5 or 2 hour जो भी discussion करेंगे, it will be a great interaction. So I require everyone to keep participating and keep replying. तो मुझे आप सबसे पहले चैट बॉक्स में बताइए कि आपका इंटरेस्ट ऑडिट को जानने में है, या जो 1 जुलाई को नोटिफिकेशन 30 जून को रात को आई उसको जानने में है. बिकॉज एज पर द इंटरेस्ट ऑफ योर मेंबर्स, आई विल स्टार्ट माई सेशन फॉर द डे. जल्दी से सर चैट बॉक्स में लिखिए, इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, ऐसा ना हो कि आप शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही सर बोर हो गए. सो यू वांट मी टू डिस्कस द फर्स्ट लेटेस्ट intricacy that had happened in 30th June right now, or you want me to discuss the something like spillover effects, जो पिछले साल के 17-18 के spillover effects, या आपने ऑडिट में क्या ध्यान रखना है इन 18-19 की ऑडिट करते समय, उस पे चीज देखें. सर चैट बॉक्स में लिखेंगे फास्ट सर. Members can click on reply to all panelists, and then अर्पित सर, brief on reply. अर्पित सर ने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर लिखा, बोथ. सर बोथ कवर करने हैं सर, पक्का. सर बोथ में से पहले कौन सा? Sir, people are also replying privately. Nirmala says spillover effects. सर कहाँ रिप्लाई कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं क्या? हाँ सर, ये एक्चुअली प्राइवेटली कर रहे हैं. आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू रिप्लाई टू ऑल द पैनलिस्ट्स. अच्छा, तो हिमांशु जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन फर्स्ट. मैं सिर्फ 2 और अच्छा लेटेस्ट अपडेट. अच्छा, सबको ये पता है कि ऑडिट तो चलता ही रहेगा, पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं. मेरे पास सिर्फ एक ही ऑडिट के लिए आया है, अदर देन दैट मेरे पास सारा डिस्कशन लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड आ रहा है. चलिए
सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द फर्दर टाइम। अगेन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कीप ऑन इंटरैक्टिंग एज मच एज यू कैन, जहां आपको क्वेरी लगती है वहां पर मेरे से डिस्कस करिए, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। मैं एक बार आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे साथ में। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है एंड चलिए सर, चैट बॉक्स साथ में खुला हुआ है, आप साइड बाय साइड अपना चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मैं चेक करता रहूंगा सर। चलिए, मेरे को सबसे पहले डिस्कस करना है सर, मेरे पास क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई। क्या आपके हिसाब से ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई? कोई भी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई? यस और नो, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, यस और नो। क्या कोई ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है? यस और नो। अच्छा, कोई ड्यू डेट, अर्पित जी कह रहे हैं एक्सटेंड नहीं हुई है। चलिए सर, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, मैं आपको एक चीज छोटी सी बताना चाहूंगा। सबसे पहले अपने माइंड में एक फंडामेंटल रखिएगा, जब भी आप लेटेस्ट कोई डिस्कशन करेंगे कि जीएसटी में क्या कोई चेंज आया है या क्या कुछ कोई एस्पेक्ट चेंज हुआ है जीएसटी के अंदर, तो मुझे उसमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। अब हमारा एक स्लैब रेट चेंज हो चुका है। स्लैब क्या है सर? नाउ द ओनली स्लैब रिमेन्स फॉर द डिस्कशन इज आइदर योर टर्नओवर विल बी लेस देन 5 करोड़ और योर टर्नओवर विल बी ग्रेटर देन 5 करोड़। यानी कि आपकी टर्नओवर या तो 5 करोड़ से ज्यादा होगी या आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगी। सिर्फ यही दो स्लैब हैं और कोई स्लैब आपके पास अवेलेबल नहीं है। The latest notification which came is notification number 57, that I have to say you have to read with circular number, sir, circular number 141, 57 नोटिफिकेशन नंबर along with circular 141, ये आपको गाइड करेगा अबाउट ऑल दी इंट्रिकेसीज इन दिस केस। चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे बोला सर आपकी टर्नओवर अगर ग्रेटर देन 5 करोड़ है, आई एम डिस्कसिंग फॉर टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ फर्स्ट, देन आई विल प्रोसीड फर्दर इन दिस केस। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे सर क्या है आपकी ड्यू डेट। आप कहोगे सर कौन से महीने की, मैं लिख रहा हूं सर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मुझे जल्दी से बताइए सर चैट बॉक्स में लिख के, चैट बॉक्स में सर प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर दिस ग्रेटर देन 5 करोड़, ग्रेटर देन 5 करोड़ सर। सर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप रिस्पॉन्डिंग सो दैट वी हैव अ बेटर इंटरेक्शन। मुझे बताइए सर आपके हिसाब से टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ में क्या कुछ गवर्नमेंट ने बोला है आपके लिए? सर आई होप आई एम ऑडिबल सर, प्लीज लिखिए सर। Attendees can leave their answers in the chat box. We just have to click on to all the panelists. Yes, sir, you are audible. यस सर, आप लिखते रहें कि मेरे को कौन सा नोटिफिकेशन में क्या बोला गया आपके लिए, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। सर आपको ऑल पैनलिस्ट को रिप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, अर्पित जी कह रहे हैं 24 जून है। अच्छा सर, ठीक है सर, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। एक चीज आप अपनी फंडामेंटली समझ लीजिए, देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनी रिटर्न एक्सेप्ट, इस पे स्टार लगा रहा हूं, अभी एक दो को एक्सेप्शन में रखूंगा। अदर देन दैट आपको फंडामेंटली याद रखना है दैट देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ एनुअल एनी ड्यू डेट ऑफ एनी रिटर्न सर। अच्छा, तो सर 5 करोड़ से ऊपर में क्या हुआ? मैंने 5 करोड़ से ऊपर में आपको बोला था सर, मैं आज आपको एक बेनिफिट भी बता के जा रहा हूं कि क्या बेनिफिट हुआ है। सर 24 जून, अर्पित जी ने जैसे लिखा 24 जून आपकी डेट कंडीशनल डेट कर दी गई है सर। I am going to write two kind of front of you. One will be the conditional date, one will be the original date.
सर फरवरी की ओरिजिनल डेट क्या थी? ये है कंडीशनल डेट। ओरिजिनल डेट क्या होती थी सर? फरवरी की ओरिजिनल डेट होती थी 20 मार्च। मार्च की क्या होती थी सर? 20 अप्रैल। अप्रैल की क्या होती थी सर? 20 मई। मई की क्या होती थी? 20 जून, 20 जुलाई एंड 20 अगस्त। Abhi, I am concerned about, I am discussing towards 3B right now. I am nowhere discussing about GSTR 1. सर फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए आपकी कंडीशनल डेट क्या रखी गई? 24 जून। 24 जून। यहां पर मैं आपके लिए सबसे पहली बड़ी बात क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। मई की रिटर्न के लिए आई एम राइटिंग, रेड कलर में लिखा है मैंने 27 जून। दिस इज द फर्स्ट स्टार विच आई डिस्कस्ड, दिस इज द एक्सटेंडेड डेट। तो यानी कि इस केस में आपकी ये डेट हो गई कन्वर्ट करके 27 जून। 27 जून सर लिखते रहेंगे ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ एक्सटेंशन। ये एक्सटेंड हुई, ये एक्सटेंड नहीं हुई, ये एक्सटेंड नहीं हुई, ये एक्सटेंड नहीं हुई। यहां तक आप लोगों को समझ आया सर? यहां तक आप लोगों को समझ आया? ठीक है। जून और जुलाई ऑनवर्ड्स आपकी कंडीशनल डेट, आपकी कंडीशनल डेट क्या रखी गई है? 30 सितंबर रखी गई है। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा लेटर पार्ट में कि इसको 30 सितंबर कैसे रखा गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है? यहां तक कोई इशू तो नहीं है? चलिए, अगर कोई इशू आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए सर। आई बिलीव एक बार चेक करेंगे सर, चैट बॉक्स में रिप्लाई सिर्फ एक आधी आ रहे हैं। ममता जी, वो 15 दिन की जो एक्सटेंशन है मैं उसी को अब डिस्कस करूंगा, उसी को अब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं उसी को डिस्कस करूंगा। देखिए सर, मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे, मान के चलिए एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? आपका एग्जाम्पल लिया जा रहा है सर मार्च की रिटर्न, मार्च 2020 के रिटर्न का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। इसकी ओरिजिनल डेट क्या थी? ओरिजिनल डेट थी सर 20 अप्रैल। कंडीशनल डेट मैंने आपको क्या बोली सर? कंडीशनल डेट मैंने आपको क्या बोली सर? 24 जून। ध्यान से देखते जाएंगे आप स्क्रीन पर सर, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि सर अगर आप पहले 15 दिन के लिए, पहले 15 दिन के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, फिर कंडीशनल डेट तक 9% इंटरेस्ट देना होगा, और कंडीशनल डेट के बाद आपको इंटरेस्ट कितना देना होगा? 18%। दैट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, मैं मान के चलता हूं आपने अपनी 3B को, आपने अपनी 3B को फाइल करना शुरू किया। आपने अपनी 3B को जब फाइल करना शुरू किया, केसेस लेंगे सर, केसेस ले रहा हूं सर। पहला केस लिख रहा हूं मैं, आपने ये केस रिटर्न को आपने 2 मई को फाइल कर दिया सर, 2 मई को फाइल कर दिया। सर मान के चलिए, मैंने आपको क्या बोला था? आपकी ओरिजिनल डेट है 20 अप्रैल, कंडीशनल डेट है 24 जून। आपने कितने टाइम पहले? 24 जून से पहले ही फाइल कर दिया है इसको। ये आपके नंबर ऑफ डेज कितने हैं सर? आपको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं इसके बीच से सर। ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं। नंबर ऑफ डेज आपके इसमें कितना गैप आ रहा है सर? नंबर ऑफ डेज का गैप आ रहा है सर 12 दिन का। आपने 12 दिन की डिले किया इंटरेस्ट रिटर्न का। क्या होगा इसमें इंटरेस्ट सर? मैंने आपको बोला फर्स्ट 15 डेज इंटरेस्ट इज 0। तो यानी कि इसमें फर्स्ट 15 डेज का डिले था, तो इंटरेस्ट होगा आपका 0%, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकंड केस मैंने आपके सामने रखा, लेट अस सपोज आपने 20 मई को फाइल किया। सर अभी मैं मार्च की रिटर्न कर रहा हूँ, 20 मई को फाइल की। 20 मई पे आपके कितने डेज बन जाते हैं? 20 मई पे आपके डेज बन जाते हैं 30 डेज। 20 मई पे आपके दिन बन जाते हैं 30 डेज। जैसे ही आपके 30 डेज बन गए सर, जैसे ही आपके 30 डेज बन गए, यहां पर अब आपके लिए 2 स्लैब आ गए सर, 2 स्लैब आ गए सर। पहले 15 दिन के लिए, फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट इज 0। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज आपका इंटरेस्ट होगा कितना? 9% पे। फॉर द नेक्स्ट 15 डेज
योर इंटरेस्ट लाइज एट 9%. इज इट क्लियर सर? ठीक है, ओके. कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं 15 days एक्सटेंशन लेटर रिड्यूस इंटरेस्ट. सर वो लेट फी के बारे में बात, और भाव कह रहे हैं सम क्लाइंट्स सीबी डेट शोइंग फॉर मे रिटर्न, व्हाई? सर आप ध्यान से समझिए, वो अभी बिलो 5 करोड़ के बारे में बात करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ राइट नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ राइट नाउ. ठीक है, चलिए. अब मैंने आपसे बोला लेट अस सपोज आपने ये रिटर्न फाइल करी होती सर 20 जून को. 20 जून क्या है? अभी भी कंडीशनल डेट से पहले ही हूं मैं. 20 जून क्या है? कंडीशनल डेट से पहले. टोटल नंबर ऑफ डेज कितना गैप आ रहा है सर ओरिजिनल डेट से? 61 डेज का. 61 डेज का. क्या अभी भी कंडीशनल डेट से पहले हूं? हाँ सर, कंडीशनल डेट से पहले हूं मैं. ठीक है, अब आपने कहा सर कंडीशनल डेट से तो पहले है अभी भी, तो मेरे यहाँ पर क्या बनेगा सर स्लैब? ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी मेरे कितने स्लैब बनेंगे? 2 स्लैब. यहाँ पर कितने स्लैब बनेंगे? 2 स्लैब. 2 स्लैब क्या बनेंगे सर? फॉर फर्स्ट 15 days योर इंटरेस्ट विल बी 0%. फॉर बैलेंस 46 days, 40 कितने डेज हो गए सर? 42 days योर इंटरेस्ट विल बी 9%. योर इंटरेस्ट विल बी 9%. ठीक है सर, यहां तक कोई इशू है? कोई इशू नहीं है. कोई इशू है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे सर. मैं अब आता हूं कि आप कंडीशनल डेट क्रॉस कर गए सर. कंडीशनल डेट क्रॉस कर गए. मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों ने कंडीशनल डेट क्रॉस कर दी है सर. मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों ने कंडीशनल डेट क्रॉस कर दिया सर. सर कितने डेज का डिले हो गया? डेज का डिले हो गया सर 71 डेज का. यहां पर अब आप सुनेंगे, यहां आपके बनेंगे 3 स्लैब सर. First 15 days your interest will be 0%. For the first 15 days your interest will be 0%. इसके बाद सर ध्यान से देखेंगे 50 दिन जो कि 24 जून तक होंगे, अगर उसका क्या इंटरेस्ट होगा आपका सर? 15 दिन के बाद उसका होगा इंटरेस्ट 9%. और सर बैलेंस जो मेरे 6 दिन बचे 24 जून के बाद से 30 जून तक, उसका मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 18%. उसका मेरा इंटरेस्ट रेट होगा 18%. सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से बताइए. क्यों? क्योंकि अब मैं इसके बाद इसकी लेट फी और इसी के इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा सर. सॉरी, GSTR 1 और लेट फी की बात करूंगा. यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है तो लिख दीजिए सर प्रोसीड. निर्मला जी कह रही है ऑल क्लियर. निर्मला जी ऑल क्लियर बहुत खतरनाक स्टेज है. या तो क्लियर होगा या क्रिस्टल क्लियर होगा. ऑल क्लियर जहां आपने बोल दिया, मान के चल रहा हूं आपके सर बाउंस हो गया सब कुछ. थैंक यू निर्मला जी, क्रिस्टल क्लियर. ओके, चलिए. सब कह रहे हैं सर प्रोसीड कर जाओ, हम इससे बहुत परेशान हैं, इसको जल्दी जल्दी खत्म करो तभी पता चले कि आगे हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. चलिए, आपने मुझे बोला सर ये आपको समझ आ गया. मैं अब आपसे पूछता हूँ सर लेट फी के बारे में क्या सोचते हैं आप? लेट फी के बारे में क्या सोचते हैं सर? लेट फी की बात समझे सर. सर लेट फी के बारे में समझने की कोशिश करिए. सर लेट फी मुझे कोई बता पाएगा? अच्छा, अर्पित जी कह रहे हैं नील इफ फाइल्ड बिफोर 24 जून. अच्छा ठीक है सर, ओके. और कोई सर, और कोई व्यू? और कोई व्यू है सर? अर्पित सर ने तो बता दिया 24 जून है. ध्यान से देखेंगे स्क्रीन के ऊपर. सर आप कहेंगे फिर आपको इसलिए बुलाया अगर हमें ही जवाब देना है. चलिए, लेट फी के बारे में करता हूं. लेट फी के लिए एक नोटिफिकेशन आया है. नवनीत जी कह रहे हैं 24 जून 500 मैक्सिमम. ओके सर, नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 ये आया है हमारी CA डे वाली मिडनाइट. सर ये नोटिफिकेशन बड़ी खतरनाक नोटिफिकेशन है. ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाती है सर, ध्यान से सुनिए, आती है 30 जून को और ये एप्लीकेबल हो जाती है कब? ये एप्लीकेबल हो जाती है सर 25 जून से. ये विद इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली होती है, इफेक्टिवली
ये बैक डेट से होती है सर। आप 24 जून की बात कर रहे थे, 24 जून के बाद से सारी कंप्लाइंसेस चेंज हो रही थी इसके अंदर। तो उसने क्या बोला, इस केस में आपको चेक करना होगा सर, इफ योर रिटर्न्स, ध्यान से समझिए, इसने दो प्रोवाइजो ऐड करे हैं, दो प्रोवाइजो ऐड करे हैं, फर्स्ट प्रोवाइजो और एक सेकंड प्रोवाइजो। सर फर्स्ट प्रोवाइजो टारगेट करता है, सर फर्स्ट प्रोवाइजो टारगेट करता है फरवरी से लेकर कहां तक की सर? सर फर्स्ट प्रोवाइजो टारगेट करता है फरवरी से लेकर अप्रैल के रिटर्न को सर। सर फर्स्ट प्रोवाइजो टारगेट करता है फरवरी से लेकर अप्रैल के रिटर्न तक को, और सेकंड प्रोवाइजो टारगेट करता है मई, जून और जुलाई के रिटर्न को। फर्स्ट प्रोवाइजो टारगेट कर रहा है फरवरी से अप्रैल और सेकंड कर रहा है मई, जून, जुलाई को। ये क्लियरली क्या बोलता है भाई साहब, ये एक कंडीशनल डेट देता है। क्या ये कंडीशनल डेट देता है? 30 सितंबर की। ये कहता है अगर आप 30 सितंबर से पहले सारी फाइलिंग कंप्लीट कर देते हो फॉर दिस फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, तो सर आपकी लेट फी लगेगी कैसे? अगर तो आपकी टैक्सेबल रिटर्न होगी तो आपकी लगेगी 500 मैक्सिमम लेट फी पर मंथ पर टैक्सेबल पीरियड, या फिर अगर आपकी नील रिटर्न हुई तो आपकी लेट फी लगेगी कितनी? 0। सर कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आपको सारी फाइलिंग 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करनी होगी। आपको सारी फाइलिंग अपनी 30 सितंबर से पहले कंप्लीट करनी होगी। यहां तक आपको किसी को कोई डाउट है? प्लीज बताइए सर चैट बॉक्स में। कोई डाउट है? नहीं है सर, चलिए कोई डाउट नहीं है। अर्पित जी कह रहे हैं कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर, ध्यान से समझिए अब होता क्या है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएं अब सर, तो 30 अगर आप सितंबर तक फाइलिंग नहीं कर पाते तो क्या होगा सर? 30 सितंबर तक अगर आप फाइलिंग नहीं कर पाते तो योर लेट फी shall be applicable at original rate from original date, ओरिजिनल रेट फ्रॉम ओरिजिनल डेट। यानी कि आपकी अगर सपोजिंगली फरवरी की या मार्च की रिटर्न जो हमने सपोजिंगली डिस्कस करी, मार्च की रिटर्न की ओरिजिनल डेट थी 20 अप्रैल, अगर आप 30 सितंबर तक फाइलिंग नहीं कर पाते तो फिर आपकी लेट फी लग जाएगी 21 अप्रैल से फ्रॉम ओरिजिनल रेट, यानी कि 50 रुपए पर डे के हिसाब से जो पुराना रेट था उस हिसाब से लगनी शुरू हो जाएगी। सर फिर क्या होगा? आप कहते हो कि अगर, ध्यान से समझिए, अगर इवन आप, ध्यान से समझिए, अगर आप इसको क्रॉस कर जाते हैं तो लेट फी की आपके ऊपर हर मंथ की फर्दर एप्लीकेबिलिटीज एट ओरिजिनल रेट होती जाएंगी। ठीक है सर, यहां तक कोई इशू? क्यों? क्योंकि 3B तो सर पिछली जाती है तभी अगली जाती है, इसलिए सर वो कंसेक्यूटिवली सब पे लगनी शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा सर। यहाँ तक आपका 5 करोड़ वाले का एक एस्पेक्ट खत्म होता है, पर साथ ही साथ अभी मेरी GSTR 1 रहती है सर, 1 रहती है। सर मुझे बताइए 1 मैं आगे ही लिख देता हूं सर इसके, मुझे बताइए सर 1 की क्या डेट्स लिखी होंगी सर? ध्यान से देखेंगे, मैं 1 की डेट्स लिखने जा रहा हूं सर। सर यहां पर मैंने आपसे फरवरी की तो कोई चेंज नहीं है, वही है 1 की डेट, फरवरी में कोई चेंज नहीं है सर। मार्च की जब 1 की बात की जाएगी आपसे, तो मार्च की 1 जानी है सर कब? 10th ऑफ जुलाई को सर। अब आप देखेंगे सर आपका जुलाई का महीना कैसे जाएगा कंप्लाइंस वाला। आपकी 10 जुलाई तक जानी है GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सर अप्रैल की जानी है सर 24 जुलाई तक, डेट ऑफ 24 जुलाई तक जानी है सर। ठीक है सर, ऐसे ही आपकी मई की कब जानी है सर? मई की GSTR 1 आपकी जानी है सर 28 जुलाई तक, यानी कि सर जुलाई के इटसेल्फ में आपकी 3 GSTR 1 जानी है सर। आगे समझ लीजिए सर, जून की GSTR 1 की बात की गई है, जून की GSTR 1 की बात की गई है 5 अगस्त। अब आप कहते हो ये सब लिखा कहाँ है सर? ये सब लिखा कहाँ है? दिस इज ऑल रिटर्न इन नोटिफिकेशन नंबर 53/2020, 53/2020। ये सारी नोटिफिकेशन आई थी 24 जून 2020 को। आई बिलीव मैंने 1, 3B
इंटरेस्ट और लेट फी ग्रेटर देन 5 करोड़ के केस में आप लोगों को कवर करा दिया है सर यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नवनीत जी क्या एप्लीकेबल है सर 3B और 1 के लिए, आप क्या पूछ रहे हैं? नॉट क्लैरिफाइड अर्पित जी, नॉट क्लैरिफाइड अभी। सर कोई और डाउट? चलिए आगे बढ़े। चलो नवनीत जी, लेट फी ऑन GSTR 1 जो होती है ये GSTR 1 पे नहीं लग रही है, सेक्शन 47 वाली है। वो आपकी सिंपली लग रही है कहाँ पर? वो सिंपली लग रही है 47 वाली नोटिफिकेशन, सेक्शन 47 में। वो 3B पे लगती है, 1 वाले की बात नहीं की गई है यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी डाउट्स है ना सर, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आज बेनिफिट उठा लो सर सेशन का। जो डाउट आ रहा है सर कंप्लाइंसेस में, प्लीज आप मेरे से खुल के पूछिए सर। अनिल जी कह रहे हैं कैन वी अमेंड बिल ऑफ फाइनेंशियल आफ्टर March 20 रिटर्न? सर मैं आपको बता देता हूं, अमेंडमेंट आज भी अप्रैल की रिटर्न में हो रही है। वेदर और नॉट उसका लीगल इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा मैं आपको बता दूं, लेकिन पोर्टल पे आज भी अनिल जी हो रही है 100%। ठीक है, आगे बढ़े प्लीज। आप फ्रैंकली पूछते जाएंगे सर, शर्म नहीं करनी सर। ये ना हो गलत रिटर्निंग या गलत आपने कुछ डिस्क्लोजर्स कर दिए, आपको शर्म नहीं करनी है सर। आज बिल्कुल खुल के पूछते रहें सर, ऐसे करें जैसे कि सर हम आमने सामने ही सेशन ले रहे हैं फिजिकली आज। चलिए मैं बिलो 5 करोड़ पे कर लूं डिस्कशन सर। टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़। नवनीत जी थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। सर पहले मुझे बता दीजिए बोर तो नहीं हो रहे? प्लीज यस और नो लिखिए कि क्या मैं बोर हो गया हूं, क्या नींद तो नहीं आ रही, बोर तो नहीं हो रहे सर, प्लीज लिखिए। ओके अभी तक तो नो नो सर। पता है क्या होता है, आप यस नो लिखेंगे तो पता लगेगा कि आप तो नहीं गए सर। चलिए थैंक यू। अभी तक 7 लोग जाग रहे हैं सर, 8 लोग जाग रहे हैं, अब 9 10। अब आपके नो नो लिखने से पता लग रहा है कि आप जाग रहे हैं। अनिल जी थैंक यू। चलिए शिफाली जी थैंक यू, ध्यान से देखिए सब जाग रहे हैं सर। चलो बिलो 5 करोड़ पे आते हैं। बिलो 5 करोड़ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने ऊपर अभी क्या बोला था आपसे, मैंने कहा भाई मई की रिटर्न एक्सटेंड करी थी इन्होंने सर, बाकी कोई एक्सटेंशन नहीं हुई है, कंडीशनल वेवर्स हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके साथ 5 करोड़ से बिलो मैं बात करूंगा कहां पर डेट एक्सटेंड हुई है, यहां पर भी मैं लिखूंगा कहां डेट एक्सटेंड हुई है, सिर्फ एक ही महीने में हुई है, बाकी नहीं हुई है। आगे एक चीज और आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आपने ऊपर 5 करोड़ ऊपर वाले में देखा होगा केस में, सर एवरीवेयर योर GSTR 1 इज गोइंग आफ्टर 3B। हाउएवर अब मैं जब बिलो 5 करोड़ में डिस्कशन करूंगा तो ट्रेंड कहीं पर आप मुझे नोट करके बताएंगे चेंज भी होगा। सर मैं मंथ लिख रहा हूं आपके साइड में, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मुझे बताइए किसी की फरवरी की रिटर्न पेंडिंग है अभी तक? मुझे ये बताइए किसी की रिटर्न फरवरी की पेंडिंग है अभी तक? अर्पित जी कह रहे हैं हाँ पेंडिंग है, तो हो सकता है फरवरी की भी किसी की भी पेंडिंग हो सकती है। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर हमें कॉन्सेप्ट पता है ना सर कि 2 स्टेट्स के अंदर बटी होती है स्टैगर्ड मैनर्स, ग्रुपिंग होती है स्टेट 1 और स्टेट 2 के अंदर, ग्रुपिंग हुई होती है स्टेट 1 और स्टेट 2 के अंदर। तो यहां पर ध्यान से सुनिए, आपकी फरवरी के लिए उन्होंने क्या रखा है, फरवरी के लिए उन्होंने रखी थी आपकी कंडीशनल डेट, अगेन आई एम रेफरिंग कंडीशनल एंड ओरिजिनल डेट। सर यहां पर आपकी कंडीशनल डेट और ओरिजिनल डेट दोनों लिखेंगे। सर आपकी ओरिजिनल डेट क्या होती थी फरवरी की? सर 22 मार्च, मान लीजिए 22 मार्च होती है, स्टैगर्ड से शुरू करेंगे, 22 मार्च होती थी। आपके लिए उसने कंडीशनल डेट क्या लिखी है? कंडीशनल डेट लिखी थी दोनों स्टेट्स के लिए 30 जून।
कंडीशनल डेट थी 30 जून। प्लीज एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ध्यान से सुन लीजिए सर, बिलो 5 करोड़ देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ 15 डेज। जो मैंने 5 करोड़ में पढ़ा था ना सर, 15 दिन तक आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। इन सच बिलो 5 करोड़ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 15 डेज। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ध्यान से देखिए, मार्च की डेट क्या होती थी, 22 अप्रैल ओरिजिनल, ये 22 मई, 22 जून, 22 जुलाई, 22 अगस्त, 22 सितंबर। ठीक है, ये ओरिजिनल डेट्स थी। सर आपकी कंडीशनल डेट आज की डेट में क्या रखी गई है, ध्यान से समझेंगे, इट्स 3 जुलाई और 5 जुलाई, 3 जुलाई और इट इज 5 जुलाई। या तो आप 3 जुलाई तक फाइल करेंगे स्टेट 1 के केस में और स्टेट 2 के केस में 5 जुलाई। ठीक है, अप्रैल के केस में आपके लिए रखी गई है सर, जुलाई का महीना देखिए आपका कितना ज्यादा कंप्लाइंसेस है सर, 6 जुलाई और 9 जुलाई, 6 जुलाई या 9 जुलाई। ठीक है सर, मई के लिए मैंने आपका क्या रखा है सर, ध्यान से सुनिए, 12 सितंबर और 15 सितंबर, 12 सितंबर या 15 सितंबर, 12 सितंबर और 15 सितंबर। चलिए, जून के लिए मैंने आपकी क्या डेट दी है सर, जून के लिए मैंने आपकी डेट दी है सर 23 सितंबर और 23 सितंबर और 25 सितंबर। सर जैसे ही जुलाई का महीना निकलेगा वैसे सितंबर का महीना भी आपका कंप्लाइंसेस में निकलेगा पूरा। 27 सितंबर या 29 सितंबर, 27 सितंबर या 29 सितंबर। सर अगस्त के लिए मैं अगेन रेड से बॉक्स में लिख रहा हूं, दिस इज एन एक्सटेंडेड डेट। ये सर एक्सटेंड हुई है, ये कंडीशनली वेव्ड नहीं है, ये एक्सटेंडेड डेट है 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। ये एक्सटेंडेड डेट है। ये सर यहां पर क्या है, ध्यान से समझिए, ये डेट को चेंज कर क्या कर दिया गया है, ये डेट को चेंज करके लिए कर दिया गया है either 1st of October or 3rd October for the different states. I hope I am very much clear यहाँ तक, मैं क्लियर हूं आपके साथ। ठीक है, अब आप बात समझिए मैंने आपसे क्या बोलना है, अब ध्यान से समझेंगे सर। अगर बिलो 5 करोड़ है तो द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज, सर आपकी ओरिजिनल डेट से, यस सर रोहित जी, आई एम टॉकिंग अबाउट 3B राइट नाउ, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 3B, मैंने 1 के लिए बात नहीं की है। ठीक है रोहित जी, सर ऐसे आप इंटरेक्ट करते रहेंगे ना, ऐसे अच्छा लगेगा कि हम सब साथ में शायद पढ़ रहे हैं, अभी भी साथ में डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकली। सर फॉर अ स्पीकर ऑल्सो इट बिकम्स वेरी मच इंटरेक्टिव सर, ऐसा लगता है, नहीं तो वेबकास्ट में सर मैं वन साइडेड बोली जा रहा हूँ, सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या होता है सर, जब हम आमने सामने बैठे होते थे ना, तो मुझे आपकी शक्ल देख के रिएक्शन से पता लग जाता था कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। बट आज की डेट में द ओनली टफ पॉइंट एंड द पेन पॉइंट फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग इज दैट आई कैन नॉट गेट योर रिएक्शन सर, कि क्या आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या क्या आपको और जानने की जिज्ञासा हो रही है, दैट आई कैन नॉट गेट इट इनटू। तो प्लीज आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझे उससे सर पार्टिसिपेटिव रखेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर चैट बॉक्स पूरा भर जाए, बट यस इट शुड बी इंटरेक्टिव सर। चलिए सर, आपको मैं क्या बोल रहा हूं, बिलो 5 करोड़ यू हैव टू रिमेंबर वन सिंपल थिंग, दैट इज माय रिक्वेस्ट, दैट फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, अगेन ओरिजिनल डेट से लेकर अगर आप कंडीशनल डेट तक भरते हैं तो योर, ध्यान से समझिए, ओरिजिनल डेट से लेकर जो मैंने कंडीशनल डेट तक रखा है तो आपका इंटरेस्ट होगा 0%। कंडीशनल डेट से अगर आप मैक्सिमम, ध्यान से समझिए, 30 सितंबर तक भरते हैं तो योर इंटरेस्ट विल बी कितना सर, ध्यान से बताइए, 9% सर, 9%, 9% सर। और उसके बाद आपका रेट हो जाएगा 18%। एग्जाम्पल से समझा दें सर, एग्जाम्पल से समझा दूं, या पहले आप, मैं 1 की डेट एक बार लिख दूं फिर चलें आगे सर। पहले 1 की डेट लिख देता हूं, राजीव जी थैंक यू, 18%। पहले एक बार 1 की डेट लिख देते हैं सर, 1 की डेट लिख देता हूं फिर आगे बढ़ूंगा सर। 1 की डेट लिख रहा हूं फिर आगे बढ़ रहा हूं सर। जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा हो सकता है कि आपकी क्वार्टरली फाइलिंग हो या मंथली फाइलिंग हो, डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़। लेट अस से अगर आपकी फरवरी की बात की जाए
तो सर मैं एक जगह क्वार्टरली को बाद में लूंगा, अगर मैं मंथली फाइल करता हूं पहले वो लिख रहा हूं सर। इसके ऊपर कोई चेंज नहीं है। फरवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ योर GSTR 1 इज मंथली, GSTR 1 इज मंथली, तो फरवरी में देयर इज नो चेंज, फरवरी में देयर इज नो चेंज। मार्च की डेट क्या रखी गई है आपके साथ? मार्च की डेट रखवाई है सर गवर्नमेंट ने, मार्च की डेट रखी है 10th of जुलाई, 10th of जुलाई, 10th of जुलाई सर, ठीक है। देयर इज नो सच स्टेट 1 स्टेट 2 कॉन्सेप्ट, इसकी एक ही रिटर्न है, एक ही डेट है 10 जुलाई। अप्रैल की रिटर्न की डेट क्या रखी गई है सर? अप्रैल की रिटर्न की डेट रखी गई है आपके लिए सर, अप्रैल की डेट रखी है 24 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है सर। मई की डेट क्या रखी है सर? 28 जुलाई। सर जुलाई का मंथ पूरा कंप्लायंसेस वाला है, ये ना हो सर कि हम मिस कर जाएं सर कोई कंप्लायंस, इसलिए इसको ध्यान से लिख लेंगे सर, ठीक है। मई की सर ये हो गई। जून की बात करते हैं सर, जून की बात क्या करते हैं सर? जून की बताएंगे सर, जून की क्या रखी है आपके लिए? जून की रखी है सर 5 अगस्त, 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त सर। जुलाई और अगस्त के लिए देयर इज नो सच क्लैरिटी राइट नाउ, अभी कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया है। यहां तक लिख लिया सर, यहां तक लिख लिया। अब आप चीज एक देखिए सर, सर ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कहीं आपका पैटर्न कभी चेंज ना हो जाए। सर आपकी 1 हमेशा इस केस में बाद में गई, इस केस में भी आपकी 1 बाद में गई सर, इस केस में आपकी 1 पहले जा रही है, स्टार मार्क करिए, 1 पहले जा रही है, 3 भी बाद में जा रही है सर। तो यहां पर आपके लिए पैटर्न फ्लक्चुएट कर रहा है सर, कभी हमारा पैटर्न होता था कि 1 पहले जाएगी, कभी हमारा पैटर्न होता था 3 भी पहले जाएगी। तो ये हमारे लिए एक पेन पॉइंट है कि सर हमें ध्यान रखना होगा, यहां पर पैटर्न 5 करोड़ से बिलो वाले में चेंज हो रहा है। चलिए मैं एक बार क्वार्टरली वाले के लिए लिख देता हूं सर। अगर आपका जनवरी से मार्च का क्वार्टर है और आपकी क्वार्टरली फाइलिंग है GSTR 1 की, तो आपके लिए डेट रखी गई है क्या? आपके लिए डेट रखी गई है क्वार्टरली फाइलिंग की 17th of जुलाई, 17 जुलाई। सर इसका कोई लॉजिक नहीं है कि डेट कहां से कौन सी डेट आ रही है, आपको सिर्फ याद रखना है, ये लिख लेंगे सर, चार्ट बना लेंगे कि कैसे कौन सी डेट आ रही है। सिमिलरली आपके लिए अगर मैं बात करूं अप्रैल से जून क्वार्टर की, अप्रैल से जून के क्वार्टर की, तो इसकी डेट आपके लिए रखी गई है 3rd of August 2020, 3 अगस्त 2020 रखी गई है। ये जो सारी GSTR 1 की डिस्कशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर 53/2020 में 53/2020 में आपके लिए लिखी गई है। सर यहां तक कोई डाउट है किसी का? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज यस और नो लिखिए, अदरवाइज आई वांट टू प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल एग्जांपल सर। चलिए अनिल जी कह रहे हैं प्रोसीड करो, प्रियंका जी कह रही हैं नो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। मैंने एक चार्ट भी बना रखा है सर, मैं इसको अपडेट करके वो भी ब्रांच के साथ शेयर कर दूंगा, दे कैन गेट इट सर्कुलेटेड विद द मेंबर्स। आप सिर्फ उसको प्रिंट करके रख लीजिए, आपके लिए वो रेडी रेकनर हो जाएगा, ठीक है। मैं तनुज जी से ब्रांच के साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देंगे। The only thing before starting my practical example I want to tell you is, अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो एक नोटिफिकेशन आई है 52/2020। सर ये क्या कहती है आपको? मुझे एक्सपेक्टेड था सर अभी तक आप लोग एक क्वेश्चन पूछ लेंगे मुझसे कि सर अगर मैंने ये नोटिफिकेशन 25 से एप्लीकेबल हुई थी और 5 करोड़ वाली अगर मैंने लेट फी जमा कर दी होगी तो उसका क्या होगा? सर उस केस में अगर आपकी लेट फी आपने जमा कर दी है 500 रुपए से एक्सेस में, तो आपको रिफंड आएगा सर उसका। However, what aspect right now I am starting is wide notification 52/2020. It clearly says that in case of 52/2020, your if having July 2017 से लेकर अगर आपकी जनवरी 2020 तक की कोई रिटर्न है
और वो पेंडिंग है 3B, तो आपकी लेट फी उन्होंने डेफर करी है इफ यू फाइल इट बिटवीन 1 जुलाई 2020 टू 30 सितंबर 2020। अगर आप इस बीच में फाइलिंग करते हैं इसकी, तो आपकी लेट फी उसने क्या रखी है, इफ यू हैव अ टैक्सेबल रिटर्न, तो आपकी लेट फी रखी गई है, तो आपकी लेट फी रखी गई है 500 रुपए, और अगर आपकी रिटर्न नील है तो आपकी लेट फी रखी गई है 0। अगेन यहां पर आप लोगों के मन में एक गुस्सा सा आएगा कि इनडिसिप्लिन लोगों को बेनिफिट मिलता है, डिसिप्लिन्ड लोगों को हमेशा कर्स मिलता है जीएसटी के अंदर। यहाँ पर ये एक हार्डशिप वाला इशू है, ये एक हार्डशिप क्रिएट कर दी गई है कि आपको जिन लोगों ने लाख लाख सवा सवा लाख रुपए दे दिए हैं वो डिफिकल्टी में फंस गए हैं। इज इट सम क्लैरिटी यहाँ पर कोई नीडेड है तो आप मुझे बताइए सर, यहाँ तक कोई क्लैरिटी चाहिए तो बताइए, अदरवाइज मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा अनुज जी, मैं इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन डिस्कस करूंगा सर अब प्रैक्टिकली, ठीक है? मैंने ये लिख दिया सर, वैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो मैंने इंटरेस्ट के बारे में यहाँ लिख दिया था सर। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगा अनुज जी। ध्यान से देख लेंगे सर। सर अगर एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूं, अगर आपकी नितिन जी रिटर्न फाइल्ड इन 3 जुलाई, कौन से रिटर्न की बात कर रहे हैं? अच्छा सर, हुज लेट फाइलिंग अबव 5 करोड़, ओके सर, हु, ओके आपने अगर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर की बात कर रहे हैं मेरे से, 5 करोड़ से ऊपर में आपने 24 जून के बाद फाइल करी है 3 जुलाई को, और आपने लेट फी जमा कर दी है एक्सेस में, तो आपका 500 रुपए के पर डे वही वाले मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से लगेगी। जो एक्सेसिव नितिन जी आपने जमा कर दी है, दैट यू आर लायबल फॉर द रिफंड दैट हैज बीन क्लैरिफाइड ऑन द ट्विटर। अभी इसकी कोई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है? चलिए मान के चलिए अगर आपकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है और आपकी मार्च की रिटर्न है, तो मार्च की रिटर्न की ओरिजिनल डेट क्या रखी थी सर मैंने? ओरिजिनल डेट होती है 22 अप्रैल, ठीक है, और कंडीशनल डेट वही 3 या 5 जुलाई जो बात कर रहे थे, ठीक है? तो कैसे होगा सर, ध्यान से समझिए। लेट अस सपोज आपने ये रिटर्न फाइल करी सर, मैंने कंडीशनल डेट रखी है आपके लिए क्या, 3 जुलाई, मान के चलिए स्टेट 1 में फॉल करता हूं मैं, 3 जुलाई की डेट रखी है। मैंने एक्चुअल फाइलिंग करी, आपकी एक्चुअल फाइलिंग करी सर 22 जून को, मैंने एक्चुअल फाइलिंग करी अगर 22 जून को, ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कंडीशनल डेट, सर ध्यान से समझिए, मैंने कंडीशनल डेट से पहले फाइलिंग कर दी है सर। कंडीशनल डेट क्या थी आपकी? 3 जुलाई सर, कंडीशनल डेट 3 जुलाई थी। इफ आई फाइल इट बिफोर कंडीशनल डेट, आपका लेट फी इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ध्यान से देखेंगे, 61 दिन का डिले था सर, इस केस में आपका इंटरेस्ट लगेगा 0%। अभी लेट फी पे डिस्कशन नहीं करी है, अभी सिर्फ इंटरेस्ट पे डिस्कशन कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग नाउ अबाउट अ केस हैविंग टर्नओवर बिलो 5 करोड़, ठीक है? लेट अस सपोज आपने 22 जून को ना करके ये 22 सितंबर को की होती। सर अब आप ध्यान से समझिए, ये तो सर आपको एक ध्यान से समझनी पड़ेगी। इफ आई क्रॉस द कंडीशनल डेट देन आल्सो देयर इज अ बेनिफिट डेट टिल 30 सितंबर। द बेनिफिट डेट क्या है सर? बेनिफिट डेट है आपके लिए 30 सितंबर, 30 सितंबर ये बेनिफिट डेट है। सर क्या बोला मैंने आपसे? मैंने कहा भाई 153 डेज का डिले हो गया, 153 डेज का डिले हो गया टिल माय कंडीशनल डेट देयर इज 72 डेज, यानी कि आपका 3 जुलाई तक 72 दिन बनते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल डेट। इसके लिए आपका इंटरेस्ट होगा 0%, इसके लिए आपका इंटरेस्ट होगा 0%, एंड फॉर द बैलेंस 81 डेज आपका इंटरेस्ट होगा 9%। क्यों? क्योंकि अभी आप बेनिफिट डेट से पहले हैं। अब आप कहते हो नहीं सर बेनिफिट डेट भी क्रॉस हो गई, अगर अगर आपने 22 अक्टूबर को फाइल की होती तो लेट अस सपोज आपका डिले होता फिर 183 डेज का, और जैसे ही आपका 183 डेज का डिले आता, 183 डेज के डिले में अब आपके बन जाते सर, ध्यान से समझिए, 3 स्लैब। सिंस यू हैव क्रॉस द बेनिफिट डेट आल्सो, कंडीशनल डेट आल्सो फ्रॉम द ओरिजिनल डेट, सर पहले 72 दिन के लिए आपका इंटरेस्ट लगेगा 0%, ठीक है? देन द नेक्स्ट 89 डेज टिल द फाइनल आपकी बेनिफिट डेट आपका इंटरेस्ट लगेगा कितना? 9%,
और सर बैलेंस बचे हुए 30 सितंबर के बाद से 22 अक्टूबर तक 22 दिन बच गए, उसका इंटरेस्ट लगेगा सर 18%। गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड एनी सच कंडीशन, उन्होंने स्लैब बना दिए हैं। क्या स्लैब बन गए आपके सर? स्लैब बन गए अगर आप ओरिजिनल डेट से लेकर कंडीशनल डेट तक जमा करते हैं तो इंटरेस्ट इज 0%, कंडीशनल डेट से लेकर बेनिफिट डेट तक जमा करते हैं तो 9%, और अगर आप बेनिफिट डेट के भी क्रॉस कर जाते हैं तो योर इंटरेस्ट इज 18%। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपकी ओरिजिनल डेट्स तो रिस्पेक्टिव मंथ्स की होती हैं, कंडीशनल डेट जो मैंने आपको चार्ट बनवाया वो होती है, बेनिफिट डेट हर एक में सेम रहती है, क्या होती है? 30 सितंबर। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है? अच्छा, तनीषा जी कह रही हैं, तनीषा जी कि एक बार एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। मैम एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने कहा आप मार्च 2020 की रिटर्न की बात कर रही हैं, इसकी ओरिजिनल डेट होती है 22 अप्रैल सॉरी, और आपको कंडीशनल डेट जो मैंने ऊपर अभी चार्ट में लिखवाई थी, कंडीशनल डेट ये रही 3 जुलाई, और आपको एक मैंने बेनिफिट डेट दी है 30 सितंबर की। ये कहां लिखी है? अर्पित जी कह रहे हैं that means interest will be available at specified slab irrespective of date of filing irrespective of turnover greater। सर अर्पित जी अगेन मैं बोलूंगा 5 करोड़ वाले में तो 15 दिन वाला बेनिफिट भी था ना सर, वो ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मात्र एक यही स्लैब है। ठीक है, ये बिलो 5 करोड़ के केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था बेनिफिट डेट तनीषा जी मेरी 30 सितंबर है, मैंने अगर ये चीज 22 जून को की होती तो टोटल 61 डेज का डिले था। यहाँ पर मैं कंडीशनल डेट से भी पहले हूं तो इंटरेस्ट इज 0%। कंडीशनल डेट क्रॉस हो जाती बट बेनिफिट डेट क्रॉस ना हुई होती तो मेरा इंटरेस्ट लगता सिर्फ 9% मैक्सिमम। अगर दोनों डेटें क्रॉस हो जाती तो स्लैब वाइज चलते और आपका इंटरेस्ट ऐसे मैनर में लगाया जाता। यहां तक कोई प्रॉब्लम है बताइए? अगेन आपका जो ध्यान से समझेंगे 57 मेरा जो नोटिफिकेशन नंबर आया था लेट फी से रिलेटेड, लेट फी से रिलेटेड नोटिफिकेशन ने क्या बोला था? अगर आपकी रिटर्न टैक्सेबल होगी और आपकी रिटर्न निल होगी, अगर टैक्सेबल हुई तो 500 रुपए पर मंथ मैक्सिमम, और अगर निल हुई तो आपकी लेट फी लगेगी 0। दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी एग्जाम्पल गुड थिंग यहाँ पर कि भाई अगर मेरी रिटर्न ओरिजिनल डेट से लग जाएगी लेट फीस, लेकिन अगर आप 30 सितंबर क्रॉस कर गए, ये कंडीशन है इसमें कि 30 सितंबर से पहले सारी फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, अगर आप 30 सितंबर क्रॉस कर जाते हैं तो अगेन आपकी लेट फी लग जाएगी एट ओरिजिनल रेट फ्रॉम ओरिजिनल डेट, ओरिजिनल रेट फ्रॉम ओरिजिनल डेट। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी होगी। अनुज जी कह रहे हैं इज देयर एनी रिलैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर रिगार्डिंग रिलैक्स और वी हैव टू पे फुल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ जुलाई? सर यहाँ पर ध्यान से समझिए, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी अनुज जी उन्होंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द कंडीशनल बेनिफिट गिवन टू यू, nowhere the date have been extended, wherever I have written in red for the date वहां एक्सटेंड हुई है। तो सर उस केस में कोई भी 52 नोटिफिकेशन नंबर में जो प्रोवाइजो ऐड करे गए हैं आपके लिए दो, सर उसमें सिर्फ लेट फी का वेवर किया है, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट फुल पीरियड का एट नेट अमाउंट नॉट एट द ग्रॉस अमाउंट। सर ग्रॉस पे नहीं पे करेंगे, नेट पे करेंगे। इज दैट वेरी मच क्लियर राइट नाउ सर? यहां तक अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मुझे बताइए सर। मैं प्रोसीड करना चाह रहा हूं सर। 100% मैं आपको सारी डेट्स का एक कंपाइल्ड चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा ब्रांच को सर, वो आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। यहां तो कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फील फ्री, क्योंकि मुझे अब जंप करना है आगे टॉपिक पे सर। तो रिप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है सब सो गए, यहाँ तो सब गुस्सा हो गए, इतनी सारी डेटों में कंफ्यूज हो गए। प्लीज नीरज जी एक रिप्लाई आ गया है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है, चलिए। अनंत जी कह रहे हैं लेट फी ऑन ओरिजिनल रेट ऑन बैलेंस शीट जीएस, यस यस जीएसटी 1 पे वही लग रही है ओरिजिनल रेट पे, उसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए डाउट किसी को नहीं है? ओके, ध्यान से देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपको, यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आपके साथ एक चीज और आपको नोट करवाना चाह रहा हूं।
देवेंद्र जी ऑडिट पे आना चाह रहा हूँ, बस 5 मिनट देंगे, पक्का ऑडिट पे आ रहा हूँ सर, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स मोर। आई जस्ट वांट टू डिस्कस वन थिंग। आपको ध्यान रखना होगा सर, आपका फरवरी से लेकर अगस्त तक का रूल 36 सब रूल 4 इज डेफर्ड, यानी कि यू हैव टू एक्चुअली अप्लाई दिस रूल इन सितंबर मंथ रिटर्न। सितंबर 2020 की रिटर्न में आपको ये अप्लाई करना है। 36(4) रूल किस चीज का होता है सर? 36(4) रूल होता है मेरा 10% और 20% वाला जो क्लॉज कहता था सर। यहाँ पे 10% 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो गया था। अब उन्होंने कहा सर सिंस कोविड की सिचुएशन है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 30 के जरिए आपको इसको डेफर करते हुए बोला कि आप सितंबर में पूरे फरवरी से लेके अगस्त तक का कंपाइल्ड सितंबर में 36(4) लगाएंगे। यानी कि आपको एक चीज का बहुत पर्टिकुलरली ध्यान रखना होगा मेरे साथ प्लीज। आप आज तो जो भी क्रेडिट लिए जा रहे हैं ले लीजिए जो 2A में नहीं दिख रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आएगी, आपको 2A में अगर क्रेडिट नहीं दिख रहा आप वो ले लेंगे, तो भी अगर सितंबर तक जाके वो ना दिखा सर, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा सर। ऊपर आप लोगों ने सबने देखा है GSTR 1 की डेट बहुत ऊपर नीचे है सर, बहुत ऊपर नीचे है। अभी तक तो ये 30 सितंबर क्रॉस नहीं करी, लेकिन अगर किसी की कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं हुई होगी और उसके 2A में नहीं दिख रहा होगा सितंबर तक, तो सर वो आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा सर। और वो सर रिवर्सल अलोंग विद इंटरेस्ट होगा या नहीं, डिपेंड्स ऑन योर यूटिलाइजेशन। वो रिवर्सल अलोंग विद इंटरेस्ट होगा या नहीं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर यूटिलाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक लास्ट छोटी सी डिस्कशन 1 मिनट की और रह गई है सर मेरी, जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रिफंड्स में डील करते हैं जीएसटी के अंदर, ये भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट चेंज था सर, रिसेंट डेवलपमेंट चेंज था सर। रिफंड्स के केस में गवर्नमेंट ने सर क्लियर कर दिया है 100%, सर क्लियर कर दिया है कि भैया अगर आपके 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा होगा तो सर वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दिस इज क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर 139 आई बिलीव। ठीक है सर, ये भी अभी रिसेंटली क्लैरिफाई कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर आपके 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा सर। यहाँ पर आपका सर्कुलर 125 135 मॉडिफाई करके टू एन एक्सटेंट अब ये क्लियरिफाई कर दिया। पहले क्या होता था, आप इनवॉइस दे देते थे, वो आपको रिफंड दे देता था, बट हाउएवर इट विल नॉट नाउ गिव यू द रिफंड। चलिए, एनी डाउट और आई कैन प्रोसीड विद द ऑडिट पर्पसेस नाउ। चलिए मैं ऑडिट पर्पस पे आ रहा हूँ। किसी को अगर कोई डाउट हो तो साइड बाय साइड लिख देंगे अगर कोई डाउट होगा तो, नहीं तो मैं ऑडिट पे आ चुका हूँ सर अब। ठीक है, मेरे को इंट्रिकेसीज डिस्कस करनी है आपके साथ जीएसटी ऑडिट की। इफ यू आर कैरिंग ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19, हैरानगी देखिए सर, हम साल 20-21 के अंदर हैं, लेकिन हम ऑडिट कर रहे हैं कौन सा अभी भी 18-19 का। 17-18 का ऑडिट जाके तो इतनी मुश्किल से खत्म किया सर हम लोगों ने। 18-19 की ऑडिट की बात करें, लेट अस कीप अ पॉइंट ऑफ 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट्स। 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट्स आर सर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है 9C के लिए आपको बोला है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 16 कि भाई आप लोगों को ऑडिट करना है तब सर ध्यान से सुनिए, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक ऑप्शनल कर दिया है और 5 करोड़ के बाद कंपलसरी कर दिया सर। सर अब मैं कह सकता हूं कि स्लैब क्या है मेरे सर, स्लैब सुन लीजिए, एक है 2 करोड़ का स्लैब, एक है 5 करोड़ का स्लैब। अगर आपका 2 करोड़ का स्लैब है तो 2 करोड़ तक आपकी एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है, और 5 करोड़ से ऊपर अगर एक्सीड करूं तो यहाँ पर 9C ऑप्शनल है और यहाँ पर 9C कंपलसरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, एक थ्योरेटिकल पॉइंट और देख लेते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि आपकी फिलहाल के लिए एनुअल रिटर्न और ऑडिट की डेट है 30 सितंबर 2020। However, we are expecting that there will be soon certain changes to GSTR 9-9C। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कंपाइल करके रख लीजिए, लेकिन फाइलिंग अभी थोड़े दिन रुक के करें सर प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, देयर आर सून सर्टेन चेंजेस एक्सपेक्टेड इन 9 and 9C। तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से भर दें सर। रमेश जी कह रहे हैं वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन रिवर्सल ऑफ बिफोर इट्स यूटिलाइजेशन। सर पटना हाई कोर्ट की जजमेंट है सर, वो कहती है कि आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना, तो सर हम उसका बेनिफिट लेंगे सर। ठीक है, रीमा जी एक बार नोटिफिकेशन नंबर 16 चेक करेंगे, अदरवाइज अगर जो नोटिफिकेशन है मैं वो भी ब्रांच के साथ शेयर कर दूंगा, एक पूरा फोल्डर बना के शेयर करूंगा। ठीक है, जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ
उससे रेलेवेंट जितनी नोटिफिकेशंस होंगी, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है रमेश जी, रीमा जी, थैंक यू। ध्यान से समझिए आगे। सर मैं आपसे बोलना चाहता हूं मेरे लिए 17-18 के ऑडिट में ऐसा क्या नहीं था जो 18-19 के ऑडिट में है? क्या आप सर स्क्रीन, आप अपने चैट बॉक्स में साइड बाय साइड लिख सकते हैं ऐसा कुछ? क्या ऐसा कुछ है जो 17-18 के ऑडिट में नहीं था लेकिन 18-19 के ऑडिट में बड़ा डिफरेंट है? क्या लगता है आपको? अर्पित जी प्रीवियस ईयर, ओके, कुछ है? अरे अर्पित जी प्रीवियस ईयर 17-18, ठीक है, वो है, डन। क्या ऐसा खास है जो आज हमें ध्यान रखना है सर इस साल? कुछ एस्पेक्ट्स लिखूंगा सर स्क्रीन के ऊपर आपके साथ, स्क्रीन पे साइड बाय साइड। Till that time, if you can interact and keep on writing, it will be very great, sir. कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत डिफरेंट हैं for the purpose of audit what 18-19 that we are doing right now. The simple things are that we need to remember. Sir, first of all, the carry forwards. The carry forwards, यानी कि carry forwards की अगर मैं बात करूं तो carry forwards मेरे हिसाब से 4 किस्म के हैं सर मोस्टली। एक है सर, 2 बिलोंग करते हैं सेल्स को यानी कि आउटवर्ड को, 2 बिलोंग करते हैं इनवर्ड को यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को। जब मैं आउटवर्ड की बात करता हूं कैरी फॉरवर्ड में, तो एक होता है कि आपने 17-18 की फिगर को 18-19 में पे किया था, एक होता है आपने 17-18 की फिगर को 18-19 में रिड्यूस किया था या एडजस्ट किया था। योगेश जी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है क्या आवाज? सर लोग लिख रहे हैं देयर इज वॉइस इशू, इज देयर सम नेटवर्क इशू राइट नाउ? या ठीक है सर? ठीक है सर, ठीक है। रीमा जी लिख रही हैं इफ आई हैड ऑडिट इन एंड माय टर्नओवर इज लेस देन स्टिल। यस रीमा जी, वो 18-19 के लिए बोली गई है, बिल्कुल ठीक है। नाउ वॉइस इज फाइन आई बिलीव, थैंक यू। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपने 17-18 की एडजस्टमेंट 18-19 में रिड्यूस की हो या एडजस्ट किया हो इसको, ठीक है, या आपने इन दोनों में से कुछ किया होगा। अगर मैं इनवर्ड की बात करूं आपसे, तो इनवर्ड में भी 2 सिनेरियो बनते हैं। एक होगा आपने 17-18 का आईटीसी 18-19 में अवेल किया होगा, एक होगा आपने 17-18 का आईटीसी एक्सेस ले लिया था और 18-19 में रिवर्स कर दिया था। चलिए ये तो हो गए 4 सिनेरियोस। क्या आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है सिनेरियो? तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, फर्दर मैं तब तक आगे के पॉइंट्स लिख रहा हूं। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान देनी है, ध्यान से समझेंगे, 1 फरवरी 2019 से अमेंडेड एक्ट इन प्लेस था सर, अमेंडेड एक्ट आ गया था सर। हम ऑडिट कर रहे हैं कौन से पीरियड का? 18-19। 18-19 के अंदर 2 महीने ऐसे हैं लास्ट के, 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक ऐसे महीने हैं जहां पर ये वाला एक्ट एप्लीकेबल होता है, अमेंडेड एक्ट। इस चीज का ध्यान भी मुझे रखना होगा व्हाइल डूइंग द 18-19 ऑडिट, ठीक है। आपको एक चीज का ध्यान और रखना होगा सर, आप बताइए क्या ऐसी नई चीज आई है? क्या ऐसी नई चीज आई है सर? अब मैं लिखने जा रहा हूं। ई-वे बिल का रिकंसिलिएशन, ई-वे बिल का रिकंसिलिएशन, ई-वे बिल का रिकंसिलिएशन का भी तो इश्यू होगा सर 18-19 के अंदर आपका, क्योंकि ये तो 17-18 में था ही नहीं सर कभी। यहां पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब आप कहते हैं सर और क्या ध्यान रखूं सर? और आप ध्यान से सुनिए, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है सर स्पिल ओवर्स का। स्पिल ओवर कौन से? जो 18-19 के आपने 19-20 में अब स्पिल ओवर किए हैं सर, 18-19 के आपने 19-20 में स्पिल ओवर किए हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है सर। और कुछ ध्यान रखना है क्या सर? और बता देता हूं आपको क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है सर? आप सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना है? रूल 36 सब रूल 4 इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 9th of October 2019। आपने जो भी पिछले स्पिल ओवर्स या टैक्स प्लानिंग करनी थी, जो आप कर रहे थे, वो इस डेट से पहले हो जाने चाहिए। क्यों?
क्योंकि सर अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आएगी नहीं तो सर वो 2A से मैचिंग शुरू कर देगा विद इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। वो आपकी 2A से मैचिंग शुरू कर देगा विद इफेक्ट फ्रॉम दिस इफेक्टिव डेट। चलिए और क्या ध्यान रखना है सर आपको, और क्या ध्यान रखना है सर, जो नोटिफिकेशंस क्लैरिफिकेशंस इस ड्यूरेशन में आई वो भी आपको ध्यान रखनी है सर। और क्या ध्यान रखना है मुझे सर, और आपको ध्यान रखना है रेट चेंजेस जो इस ड्यूरेशन में हुए उनका भी ध्यान रखना है आपको सर। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर आपके लिए ऑडिट को थोड़ा सा इस बार नया एक एक्साइटिंग एडवेंचर जर्नी बना देंगे सर। इस बार आपके लिए ऑडिट कुछ नया हो जाएगा सर। चलिए मैं आपके साथ छोटी सी एक चीज से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मेरे को आपको एक चीज क्लैरिफाई करनी है सर। आई एम स्टैंडिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1718 एंड 1819। मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूंगा एक चीज, 2 मिनट लगेंगे सर, इस चीज को क्लैरिफाई कर लीजिए प्रॉपरली पहले। सर क्या मैं बोलना चाह रहा हूं सर, सर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और आपको ध्यान रखना होगा सर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं while carrying the audit for 1819 very much sir, very much in the sense, can you write it in the chat box again? I am repeating sir one thing, can you write it in the chat box sir? आपने 17-18 का ऑडिट खत्म किया सर, आपके पास 31 मार्च को कोई स्टॉक इन मूवमेंट की ट्रांजैक्शन हो सकती है, स्टॉक इन ट्रांजिट की मूवमेंट हो सकती है सर। आपने कुछ चीज इंपोर्ट की थी वो पोर्ट पे हो सकती है और पता लगे 28 मार्च को वो पोर्ट पे थी और आपको रिसीव हो रही है। ध्यान से सुनिए, 28 मार्च को आपने वो इंपोर्ट कर लिया था 2018 में और आपको वो रिसीव होता है आपकी प्रेमाइसिस में, आपकी प्रेमाइसिस के अंदर वो रिसीव होता है इन योर प्रेमाइसिस ऑन 3rd of April 2018। मुझे बताइए सर क्या आप इस चीज का इनपुट किस साल में लेंगे सर, इसका इनपुट किस साल में लेंगे सर? इज इट 1718 और 1819? मैं ट्रांजैक्शन रिपीट कर रहा हूं सर, ये इंपोर्ट कर लिया था आपने, ठीक है, मैं आपके रिप्लाई की वेट कर रहा हूं सर, मेरे पास 3-4 रिप्लाई आ चुके हैं। 1819 अनिल जी शुड बी 1819, ओके। और क्या लिख रहे हैं सर लोग? लिखा जी 1819, ओके। चलिए सबके मेजॉरिटी आंसर 1819 आए हैं, मेजॉरिटी आंसर आई हैव रिसीव, मेजॉरिटी भी नहीं कहूंगा 100% अभी तक जितने रिसीव हुए हैं, दैट इज टोटली सेइंग 1819, दे आर टोटली सेइंग 1819। तो मैं आपसे एक चीज रिकैप्चुलेट करा देता हूं, जीएसटी को आए हुए 3 साल हो चुके हैं, नाउ इट इज अ 3 ईयर नोटोरियस बेबी। सो आज भी ये परेशान कर रहा है सबको, ध्यान से देखिए सर। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है इनपुट लेने की? 4 कंडीशन होती हैं दैट यू नीड टू सैटिस्फाई। पहली कंडीशन क्या होती है सर? पहली कंडीशन होती है दैट यू नीड टू हैव अ टैक्स इनवॉइस, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? शिखा जी कह रही है इनवॉइस शुड बी देयर, थैंक यू। दूसरी कंडीशन क्या होती है? चारों कंडीशन लिखते जाएंगे सर जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में साइड बाय साइड। मेरे लिए दूसरी कंडीशन होती है you must have received the supplies, supplies should have been received, सप्लाई रिसीव हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है सर, सप्लाई रिसीव हो जानी चाहिए, ओके। तीसरी कंडीशन अनिल जी ने लिख दी है, टैक्सेस शुड हैव बीन पेड, टैक्सेस शुड हैव बीन पेड। अच्छा ठीक है, चौथी लास्ट कंडीशन अनिल जी, रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड, ओके। मैं जरा आपके ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, अगर मैं एक एक चीज को जरा पिक करने लगूं तो सर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, ये आप चेक कर लोगे, ठीक है। मुझे बताइए सर अब प्रैक्टिकली टैक्स इनवॉइस क्या फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए या ईमेल पे भी चल जाएगा? क्या फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए या ईमेल में भी चल जाएगा?
again I am writing it should be in original form or email will work. yes बताइए सर, बताइए ओरिजिनल या ईमेल चल जाएगा? डिजिटल इनवॉइस, वेरी गुड सर, सब कह रहे हैं दोनों एक्सेप्टेबल हैं, हमें फंडामेंटल्स 100% क्लियर हैं, ठीक है, यहाँ पर किसी का मुझे नहीं लगा कोई फंडामेंटल इशू है सर। ईमेल वाला अगर डिजिटली साइंड है तो चल जाएगा, और अगर ओरिजिनल है तो वो वैसे ही पेपर में अगर साइंड है तो चल जाएगा। चलिए यहाँ तक मुझे और आपको दोनों को कोई फंडामेंटली इशू नहीं है। सर व्हेन आई से इट शुड हैव बीन रिसीव्ड, सर यहां पर अब आप मेरे को एक नई चीज समझाएंगे आज। इट शुड बी रिसीव्ड के अंदर जब मैं बोलता हूं तो इफ क्या ओनली एक्चुअल डिलीवरी वर्क्स या कंस्ट्रक्टिव भी मान ली जाएगी? एक्चुअल भी मान ली जाएगी या कंस्ट्रक्टिव भी मान ली जाएगी? प्लीज बताइए। एक्चुअल मानी जाएगी या कंस्ट्रक्टिव मानी जाएगी? सर इस पे मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए सर। एक ही आया अभी तक रिस्पॉन्स सर, वो कह रहे हैं एक्चुअल होनी चाहिए। अनिल जी यू हैव रेज द हैंड आई बिलीव, कोई सर एक बार होस्ट देख लेंगे, जो हैंड रेज कर रहे हैं सर उसमें क्या है सर? अच्छा सबने लिखा है ऑलमोस्ट अभी तक एक्चुअल होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए। अभी तक 3 ही सवाल जवाब आए हैं सर, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव में। सर बाकी प्लीज सो तो नहीं रहे हैं सर, प्लीज बताइए। सर मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। आप एक शोरूम में जाते हैं, रमेश जी यू हैव वंडरफुली क्लिक्ड द पॉइंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड। निर्मला जी कंस्ट्रक्टिव कह रही हैं। सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप एक शोरूम में, शिवाली जी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है शिवाली जी? अब सर इज द वॉइस क्लियर? चलिए आवाज आ रही है, ठीक है आ रही है, थैंक यू। मैं आपसे पूछ रहा हूं जब आप एक शोरूम में टीवी लेने जाते हैं अपने ऑफिस के लिए, आप टीवी को गाड़ी में रखते हैं, सर गाड़ी से उसको कोई चुरा के ले जाता है या गाड़ी में वो टूट जाता है ले जाते हुए, रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका होता है, ना कि शोरूम वाले का, ठीक है। सर जहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है वहां रिसीव्ड कंप्लीट हो जाता है। सर मैं आपसे बोलना चाहता हूं इन केस ऑफ इंपोर्ट, जो मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन इंपोर्ट की लिखी थी अभी, सर पोर्ट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लेके आ रहे होते हैं डिलीवरी को। जब आप लेके आ रहे होते हैं तो आपको माल वहीं पे रिसीव हो गया है, इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड। सर नहीं तो अगर आप मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं कि पहले उसको प्रेमाइसिस में लाना जरूरी है, तो अगर आप उस सामान को वहीं से कहीं और बेच देते बिल टू शिप टू करके, तो वो आपको कभी ना मिलता, तो क्या आप उसका इनपुट बुक ना करते सर, जो आईजीएसटी आप पे करते हैं पोर्ट पे? Sir, I want to say the case which I referred and wrote on the screen for you, you have to take the input in 1718 itself. आप 1819 में नहीं लेंगे, 1718 में ही ले लेंगे उसका क्रेडिट। रिसीव्ड के अंदर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी कंप्लीटेड मानी जाती है। ओनली यू नीड टू चेक वन थिंग, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ है। सर यहां से रिस्क एंड रिवॉर्ड किसका होगा वो माना जाएगा। अगर सर सप्लायर ने बोला कि वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा माल को, तो सर रिस्क एंड रिवॉर्ड फैक्ट्री में पहुंचने के बाद होता है। हाउएवर इन केसेस ऑफ इंपोर्ट जो मैंने लिखा था, पोर्ट पे माल मिल जाने से ही रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म हो जाता है, उसके बाद आप लेके आते हैं डिलीवरी को। सर यू कैन नॉट डिनाई द क्रेडिट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सर क्या हुआ बताइए सर, कोई डाउट है? गलत तो नहीं बोला सर मैंने, प्लीज बताइए, कोई डाउट तो नहीं? बोथ कैन वर्क सर, डन, कोई डाउट नहीं है सर। सर टैक्सेस शुड हैव बीन पेड,
टैक्सेस शुड हैव बीन पेड लोगों ने लिखा था सर, टैक्सेस शुड हैव बीन पेड लोगों ने लिखा था। व्हेन आई से टैक्सेस शुड हैव बीन पेड, सर मुझे सिर्फ इतनी सी एक बात बताइए, व्हेन आई से टैक्सेस शुड हैव बीन पेड, टैक्सेस पेड का मतलब क्या है? मैं कैश लेजर में जमा कर दूं, मान दिया जाएगा टैक्स पेड है? बताइए। कैश लेजर में पैसा जमा करना, प्रियंका जी कह रही है नहीं माना जाएगा सर। चलिए नहीं माना जाएगा। सेट ऑफ इज रिक्वायर्ड, 100% सेट ऑफ इज रिक्वायर्ड। ध्यान से समझिए, यहां पर दोनों को कवर करता हूं मैं सप्लायर के केस में अगर कहता हूं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, रिसिपिएंट कहता हूं रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म में, पर बोथ केसेस में मैं कहता हूं ऑफसेट होना जरूरी है, ना कि कैश लेजर में डिपॉजिट करना जरूरी है। ठीक है सर। लास्ट फोर्थ केस में अगेन आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन विच आई ऑलवेज आस्क। सर आपने बोला था रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए, सर किसकी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए? किसकी रिटर्न फाइल्ड होनी चाहिए? सप्लायर की या रेसिपिएंट की? सप्लायर की या रेसिपिएंट की? सर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप जवाब नहीं देंगे इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सप्लायर, सप्लायर, अच्छा बोथ। ओके ठीक है सर। 100% लोगों ने बोथ लिखा है, 100% लोगों ने बोथ लिखा है। चलिए कौन कहता है रिसिप, अच्छा अर्पित सर ने रिसिपेंट लिखी दिया मेरे बोलते ही। अच्छा रिसिपेंट लिख दिया दो लोगों ने सर। ध्यान से समझेंगे सर, मजेदार बात बता देता हूं, सबने मेजोरिटी पहले शुरू शुरू में सप्लायर 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 लिखा, बहुत कम लोगों ने सर रिसिपेंट लिखा है सर, हार्डली। अच्छा बहुत लोगों ने डिप्लोमेटिकली सर बोथ लिख दिया है। मैं आज भी बता देता हूं, 3 साल हो गए जीएसटी को आए हुए सर, ये कंफ्यूजिंग थॉट हमेशा से रहा। लेट मी टेल यू सर, यहां पर ही शब्द लिखा हुआ है लॉ के अंदर, ही रेफर्स टू रिसिपिएंट इन दिस सेक्शन सर। ये सेक्शन रिसिपिएंट पे लगता है, यानी कि सप्लायर की रिटर्न की बात नहीं की जाती, रिसिपिएंट की रिटर्न की बात की जाती है इस सेक्शन के अंदर। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट टॉक्स अबाउट सप्लायर, इट टोटली टॉक्स अबाउट रिसिपिएंट सर। यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर ये रिसिपिएंट है। अब आपको मैंने दोनों चीजें समझाई सर, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी भी आपको माननी होगी। द नेक्स्ट पेन एरिया विच आई वांट टू टॉक अबाउट टू यू इज, ध्यान से समझिए सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यहां तक अगर आपके कोई डाउट्स आएंगे ना सर, प्लीज फ्रैंकली फील फ्री सर। मुझे सर बहुत अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं, मैं बता पाऊं या नहीं बता पाऊं तो मैं सीख कर समझ के आपको बता पाऊं। तो आप प्लीज लिखते रहिए, फील फ्री टू गेट, यहाँ पर लिखते जाइए, फील फ्री कि आपको कोई क्वेरी पूछनी है आप लिखिए यहाँ पर। सर मैं आरसीएम की बात करना चाह रहा हूँ, मैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशंस कर रहा हूँ सर आज सारी। सर मैं पूछता हूँ आपसे, मैं फिर पार्टिसिपेंट से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा इसमें। मुझे बताइए सर, कोई एक 18-19 का आरसीएम है, आप ऑडिट करने लगे, 18-19 का एक आरसीएम निकल आया सर, 18-19 का एक आरसीएम निकल आया जो आज तक पेड नहीं है, टिल डेट नॉट पेड। मुझे बताइए सर इसका क्या करोगे आप? 1 लाख रुपए का इनवॉइस था, 18,000 रुपए जीएसटी था, ये आरसीएम पे आज तक नहीं हुआ, आज तक। आई एम टॉकिंग अबाउट 4 जुलाई 2020। इसका क्या करेंगे सर आप? 18-19 निकल गया, 19-20 निकल गया सर, अब 20-21 चल रहा है, आप ऑडिट में इसका क्या करेंगे सर? जल्दी से रिस्पॉन्स करिए, फास्ट सर। सर कंटेंट इज ह्यूज सर, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, जल्दी जल्दी बताएंगे सर।
सर मैं वो ग्रे पेन एरियाज ले रहा हूं जहां पर हम लोगों को प्रॉब्लम आती है ऑडिट करते हुए। सर किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर, इस पे जल्दी से रिस्पॉन्स करिए सर, मैं लिख देता हूं सर। ममता मैडम ने लिखा है आरसीएम शुड बी डिपॉजिटेड बट आईटीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड। सबका क्या थॉट है इस पे सर, मुझे बताइए सर, इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं क्या सर आज की? आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे सर, प्लीज रिस्पॉन्स करते रहें सर। आरपीजी कह रहे हैं डिपॉजिट विद इंटरेस्ट। आरपीजी इनपुट का क्या होगा ये भी लिखिए सर। चलिए मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझिए। रेफरिंग दी 3 जुलाई 2000, ध्यान से समझिए, 3 जुलाई 2019 प्रेस रिलीज, पॉइंट नंबर जी, 3 जुलाई 2019 प्रेस रिलीज। ये लीजिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पर खोल दी है। इसका पॉइंट नंबर जी, ये जो स्क्रीन पर लिखा है, ये क्या कहता है सर? ध्यान से देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है अगर आपने कोई 17-18 का क्रेडिट आरसीएम का 18-19 में पे किया है तो वो भाई साहब आरसीएम इनपुट बना ही 18-19 में था। सर आप लोगों ने मेरे साथ अभी अभी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 पढ़ा और आपने कहा जब तक टैक्स डिपॉजिट ना हो जाए ना भाई तो वो इनपुट नहीं बनता, तो वहां इनपुट नहीं ले सकता। सर आरसीएम के केस में जब तक टैक्स डिपॉजिट ही नहीं हुआ था तो वो इनपुट कैसे बन गया? सर 18-19 का क्रेडिट अगर आप आज डिपॉजिट करते हो through your 3B, so while depositing through 3B this becomes your ITC now and you can fully avail it in the 3B sir। अब आप कहते हो ये तो बहुत मजेदार बात है सर, ये तो बहुत मजेदार बात है सर। द मेन कंडीशन पॉइंट आई एम सेइंग इज डिपॉजिट द इंटरेस्ट ऑल्सो, इस पे 18% इंटरेस्ट भी जमा करो। सर इनपुट डिनाई नहीं कर रहा मैं आपका, मैं आपको इनपुट दिला रहा हूं। However, the only thing I'm talking is you have to deposit it in 3B, take the input tax credit, deposit the interest of 18%. The whole chapter is closed for this chapter thing। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या सर? कोई डाउट है या मजा आ गया सर इस चीज को जान के? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, the next major aspect when I need to discuss for conducting the audit, सर आपके साथ एक एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके साथ एक एग्जाम्पल लूंगा, उससे मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। However, if in future मैं सर एनुअल रिटर्न की फॉर्म की जब फाइलिंग करवाऊंगा आपके साथ, कभी सर मुझे चांस मिलेगा आपके साथ उस पे, तो मैं उस केस में आपको इसमें और डेप्थ में केसेस वाइज ले जाऊंगा। ममता जी यस, 17-18 का क्रेडिट अगर आज 19-20 में भी डिपॉजिट होता है तो भी मिल जाएगा। चलिए मैं सिर्फ एक केस आपके साथ डिस्कस करूंगा बिकॉज देयर आर मल्टीपल केसेस, बट वो डिस्कस करने में सर इटसेल्फ 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, तो मैं केस स्टडीज पे नहीं जाऊंगा। हाउएवर मैं एक चीज आपके साथ बस डिस्कस करूंगा इसके अंदर। ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मुझे आपका जवाब चाहिए होगा इसमें। सर अगर लेट अस सपोज मैंने कोई 17-18 का इनपुट टैक्स क्रेडिट 18-19 में क्लेम किया है, अवेल किया है, सर उसकी प्रेजेंटेशन एनुअल रिटर्न में कैसे होगी? उसकी प्रेजेंटेशन एनुअल रिटर्न में कैसे होगी इसके साथ, क्योंकि सर मैं सिंस हर टॉपिक को इंट्रिकेसीज को डिस्कस कर रहा हूं आज ऑडिट में, तो मेरे को अभी आपके साथ एक टॉपिक और भी डिस्कस करना है, तो मैं पहले ये वाला भी प्रीवियस ईयर स्पिलओवर्स को भी डिस्कस कर रहा हूं, तो मुझे ये चीज पे ध्यान रखना है। क्या करेंगे सर, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेट अस सपोज, मैं ये एग्जाम्पल बना रहा हूं सर आपके लिए, लिख लेंगे। देयर इज वन इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 1890, 18-19 का इटसेल्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट 1200 रुपए है, इटसेल्फ क्रेडिट 1200 रुपए है। सर ये एग्जांपल नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18-19 में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेट अस सपोज 1200 रुपए बनता है, इसमें से 800 रुपए आपने 18-19 में अवेल कर लिया था, ठीक है, और 400 रुपए 19-20 में अवेल किया। सर मैं आपको वाटरफॉल इफेक्ट समझाना चाह रहा हूं सर अब, ठीक है। आपने कहा ओके सर, 17-18 का क्रेडिट जो आपने स्पिल ओवर करा के 18-19 में लिया था, 17-18 का जो आपने 18-19 में क्रेडिट लिया था वो था सर 500 रुपए,
ठीक है सर। तो टोटल मुझे बताइए आपकी 3B में कितना क्रेडिट आ रहा होगा इस पर। टोटल आपकी 3B में 18-19 के 3B में क्रेडिट आ रहा होगा सर 1300 रुपए। 1300 रुपए। एम आई राइट और रॉन्ग सर? 1300 रुपए कैसे आ रहा होगा? बिल्कुल ठीक है प्रियंका जी। 1300 रुपए कैसे होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड दिस एडेड 1 + 2। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है सर। ये चीज अगर आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कितनी क्रिटिकल है सर एनुअल रिटर्न इस बार। एग्जाम्पल लिख लिया सर, आगे बढ़ू, इसको समझने की कोशिश करते हैं सर। सर अगेन मैं आपके सामने टेबल्स लिख रहा हूं सर, 6, 7, 8 सर। 6A B J M O, 7H 7J, 8A B C D E F और टेबल नंबर 13। ठीक है, मैंने सारे टेबल्स लिख दिए आपके साथ। सर 6A में कितना आ रहा होगा क्रेडिट? 6A में आ रहा होगा सर 1300 रुपए। ये आ रहा होगा सर ऑटो पॉपुलेट होके, और ये चेंजेबल नहीं है, ये फ्रोजन फील्ड है, ये लॉक्ड है फील्ड, ये लॉक्ड है फील्ड, ये चेंज नहीं होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये फिगर आप चेंज नहीं कर सकते। ओके सर, यहां तक कोई इशू है? कोई इशू नहीं है सर। यहां पर अब आपने मुझे बोला सर 8A के अंदर कितना क्रेडिट आ रहा होगा सर, खुद लिखकर। 8A के अंदर कितना क्रेडिट आ रहा होगा? सिंस 1200 रुपए था उस साल का क्रेडिट, तो यहां पर 1200 रुपए आ रहा होगा सर। अगेन ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है और ये चेंजेबल, ये भी ऑटो पॉपुलेटेड है और चेंजेबल नहीं है सर। सर यहां पर मुझे सिर्फ आपसे इतना जानना है 6B में कितना क्रेडिट आएगा? 6B में कितना क्रेडिट डालेंगे आप? द ओनली थॉट प्रोसेस इज, यहां पर अब आपको मुझे बताना है कि आपने कैसे इसकी प्रेजेंटेशन करनी है जो पिछले साल का क्रेडिट भी आ रहा था। हाउ मच यू नीड टू पुट इट इन 6B? सर 6J ऑटो पॉपुलेट होता है, 6AO ऑटो पॉपुलेट होता है, 7J ऑटो पॉपुलेट होता है, ऑटो पॉपुलेटेड। बताइए सर, प्लीज कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग सर, आई नीड योर हेल्प। मुझे बताइए यहां पर आप कितना क्रेडिट लिखेंगे 6B के अंदर? जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए सर प्लीज। कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग फास्ट सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर, क्यों? थक गए सर आज? 6B में आप क्रेडिट डालेंगे सर। 6B में प्रियंका जी कह रही हैं 1200 सर। 6B में आप क्रेडिट डालेंगे 800 रुपए का। 6B में आप शिखा मैम कह रही हैं 500। देखिए सर मैम, 6B में आप डालेंगे 800 रुपए। सर जैसे ही आप 800 रुपए डालेंगे यहां पर ऑटोमेटिकली 800 रुपए खुद लिखा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6H में भी ऐड करता है और H मेरा अभी मान के चल रहा हूं कुछ है नहीं। सर जैसे ही आप 800 500 रुपए का डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, जैसे ही आप 500 रुपए का डिफरेंस खड़ा होगा, आप 6M यानी कि एनी अदर ITC में लिखकर इसको खत्म करेंगे, और जैसे ही आप एनी अदर ITC में लिखेंगे इसको, आपका यहां पर क्रेडिट आ जाएगा 1300 रुपए। सर यहां पर आपका क्रेडिट आ जाएगा 1300 रुपए। इज इट क्लियर सर? यहां तक क्लियर है सर? चलो आगे बढ़े। यहां पर आपने कहा 7H में कोई फिगर नहीं आएगा, 7J में मेरा 1300 रुपए ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब ध्यान से देखेंगे सर, मैंने 400 रुपए अगले साल लिया है, यस और नो? मैंने एग्जांपल में लिखा था सर 400 रुपए अगले साल लिया है, यानी कि ये सर मैं किस कर रहा हूं? 18-19 एनुअल रिटर्न। यहां पर आपका 6D में 0 हो गया, ये आपका भरा नहीं, और 13th के अंदर भी आपको 400 रुपए लिखना है। This is what I want to tell you, the spillover effect has to be dealt in annual return. इसमें मैंने 17-18 का भी spillover effect लिया सर, ये रहा 17-18 का spillover effect। ठीक है, ये रहा आपका 18-19 का क्रेडिट।
ये रहा आपका 19-20 में स्पिल इफेक्ट, ये सारा मैंने आपके साथ एनुअल रिटर्न में डिस्कस कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अदरवाइज इन फ्यूचर जब एनुअल रिटर्न का फॉर्म स्टेबलाइज हो जाएगा, आई विल श्योरली डिस्कस केस टू केस बेसिस, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस कि आपको कैसे इसके अंदर केसेस को ड्रॉ करना है या स्पिल ओवर इफेक्ट्स को दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज आई कैन प्रोसीड सर। कोई डाउट है तो साइड बाय साइड लिखते रहेंगे, आई वांट टू प्रोसीड सर। चलिए, द मेजर थिंग आई वांट टू डिस्कस इन योर न्यू 1819 आपका न्यू फाइनेंस एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था, जो सारा आपको देखना था, अमेंडेड एक्ट आया था सर, उसमें नेक्स्ट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बिकेम न्यू। जो मैंने आपसे बोला था आपको ध्यान रखना है ऑडिट के टाइम पे, योर न्यू 17.5 इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019। यानी कि आपको क्या करना है सर, 18-19 का जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको महीने में ये वाला फाइनेंस एक्ट, सॉरी अमेंडेड जीएसटी एक्ट देखना होगा। यहाँ पर 17.5 में ऐसा क्या था सर जो आप बार बार बोल रहे हो कि इसको स्ट्रेस कर रहे हो? सर मैं आपको बता देता हूँ, देयर वर ओनली फ्यू टेक्निकल थिंग्स दैट गॉट चेंज्ड। मैं बस उनको लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, उसके बाद सर इंट्रिकेसीज आपकी ऑलमोस्ट डन हो जाएंगी सर ऑडिट पर्पज से। सर कुछ चेंजेस लिख रहा हूँ आपके सामने, वो चेंजेस लिख लेंगे, नोट कर लेंगे सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। सर सबसे पहला चेंज आया था 17.5 के एक क्लॉज में, उसने बोला था अगर आप 13 सीटर कैपेसिटी से ऊपर का मोटर व्हीकल लेते हो, इन सच अ केस आपको 13 सीटर मोटर व्हीकल की कैपेसिटी से ऊपर, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हो ना हो सर, उसका क्रेडिट ऑटोमेटिकली आपको अलाउड है। 13 सीटर कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर। यानी कि अगर आपके किसी क्लाइंट ने 1 फरवरी 2019 के बाद कोई टेम्पो ट्रैवलर खरीदी होगी सर, आई एम सेइंग 13 सीटर अप्रूव्ड कैपेसिटी। ये ना हो कहीं आप सोचो कि भाई मैं गाड़ी में 13 सीटें लगा लूं तो क्रेडिट मिल जाएगा क्या सर, इट शुड बी 13 सीटर अप्रूव्ड कैपेसिटी। वंस यू गेट द 13 सीटर अप्रूव्ड कैपेसिटी यू कैन टेक एंड अवेल सच क्रेडिट। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है सर? देखिए लिखते जाएंगे सर। द नेक्स्ट मेजर चेंज सर, नेक्स्ट मेजर चेंज क्या हुआ सर, ध्यान से देखिए, रीफ्रेमिंग हुई सर सेक्शन की। सर रीफ्रेमिंग हुई किस चीज की सर? रीफ्रेमिंग हुई 17.5H बी की। सर बी क्या कहता था? फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा सर, फूड एंड बेवरेज का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा सर। ओके, आपने कहा ठीक है नहीं मिल पाएगा सर, मैंने आपसे क्या बोला? रीफ्रेमिंग ऑफ सेक्शन हुआ। व्हेन आई सेड रीफ्रेमिंग, उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई? अगर आपको लॉ परमिट करेगा, अगर आपको लॉ कहेगा कि आईटीसी आपको ये खर्चा करना है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा सर। 17.5 के अंदर बी के अंदर मैं लिख रहा हूं 17 सबसेक्शन 5 सब क्लॉज बी, इसके अंदर जो भी क्रेडिट्स लिखे हैं, अगर कोई लॉ कहेगा, स्टैट्यूट कहेगा कि ये वाले खर्चे करने हैं तो आपको उसका क्रेडिट 100% मिल जाएगा, 100% अलाउड हो जाएगा। यानी कि ये आपको ध्यान रखना होगा सर। अभी प्लीज सेशन छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि मुझे अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, मिस हो जाएगी सर आपसे ऑडिट में, वो भी ध्यान रखेंगे। मैं अभी सर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। 17.5 में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रेंट अ कैब सर। रेंट अ कैब सर, गुड़गांव में, हरियाणा में गुड़गांव में क्या बोला जाता है कि भाई अगर आपकी फीमेल स्टाफ 8 बजे के बाद जाएगी तो आपको उसको कैब करा के देनी होगी। इन सच अ केस सर, 8 बजे के बाद जो कैब में जाएगी सर लेडी स्टाफ, उनकी गाड़ी का क्रेडिट जो जीएसटी लगा होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा 1 फरवरी 2019 से। सर यहां तक आपको कोई चीज समझ आई सर? यहाँ पे डिफिकल्टी तो नहीं है? चलिए, अगेन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज वुड बी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्स। सर इट हैज वेरी मच मेड क्लियर, अगर आप या तो फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स, फर्दर सप्लाई, मुझे बताएंगे जब गाड़ी की क्रेडिट की बात करता हूं तो 3 एक्सेप्शंस होती हैं सर। पहली एक्सेप्शन क्या होती है? व्हेन यू मेक द फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स,
मुझे प्लीज सब लोग ये बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स। सर फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल्स का क्या मतलब होता है? अर्पित जी कह रहे हैं कार डीलर सर, और कोई लिखिए सर प्लीज, मैं इस पे आज आपका फिर से एक फंडामेंटल चेंज करूंगा सर। अर्पित जी ने लिखा है सिर्फ, और कोई नहीं लिख रहा सर, प्लीज लिखिए। बड़ी नई चीज सीखेंगे सर आप आज भी पक्का। फर्दर सप्लाई का क्या मतलब होता है? वेरी गुड ममता मैडम, निर्मला मैडम, राजीव जी। सर फर्दर सप्लाई शब्द लिखा है, फर्दर सेल नहीं लिखा। सप्लाई कवर एवरीथिंग, लीज, रेंटल, एवरीथिंग। आपने अगर गाड़ी को आगे किराए पे देना शुरू भी कर दिया तो भी क्रेडिट मिलेगा 100% सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर 13 मोटर व्हीकल की बात करी गई थी, 13 का तो एक्सेप्शनली अलाउड ही है। और सर एक और केस होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी कि आपको 5 केस लिख के दिए मैंने जहां पर आपको गाड़ी का क्रेडिट मिल गया। तो अगर गाड़ी का क्रेडिट मिल गया तो गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट भी मिल जाएगा। इट इज एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड आफ्टर 1 फरवरी 2019। अगर आपको गाड़ी का इटसेल्फ क्रेडिट मिल रहा है तो गाड़ी के ऊपर किए हुए रिपेयर का भी क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर इटसेल्फ गाड़ी का क्रेडिट नहीं मिला तो रिपेयर मेंटेनेंस का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, सर्विसिंग का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज 17.5 में बहुत इंपॉर्टेंटली कवर की गई है। चलिए अब थोड़ा सा, मैंने आपको बोला था लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बिफोर आई हैंड ओवर टू दी ब्रांच और ओपन दी क्वेश्चन सेशन। मैं आपसे एक चीज इंपॉर्टेंट स्क्रीन पर लिख रहा हूं, प्लीज नोट कर लेंगे। देयर आर वेरी फ्यू, हमारे पास फ्यू ऑफ देयर आर एडवांसमेंट इन जीएसटी लॉ। सर हमने 17-18 में जो चीजें मिस कर दी वो चीज देख लेंगे क्या होगी सर। देयर कैन बी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। अगर आप एम्प्लॉइज से रिकवरी करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। इफ इन केस, ध्यान से समझिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन सप्लाई and you need to recover GST and pay GST on that. अगर आप रिकवर नहीं कर रहे तो आप जो भी रिकवरी कर रहे हैं that will be treated inclusive and you need to deposit GST on that. यहां तक ये बात समझ आई? अगर आपने रिकवरी ऑफ एम्प्लॉइज को मिस कर दिया, ये हमने रिसेंट एडवांसमेंट्स देखी, जो लॉ जैसे प्रोग्रेस किया हमने ये चीजें सीखी। नेक्स्ट चीज मैं बताता हूं, अगर आपने रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय करी उस पर जीएसटी है। सर अब आपसे मैं छोटी सी चीज पूछता हूं, सर आपने कहीं असेसी ने रिफंड्स अप्लाई किए थे? सर अगर आपने रिफंड्स अप्लाई करते हुए देखा हो तो उसके रिफंड रिजेक्ट हुए होंगे, उसकी आपको प्रॉपर रीजनिंग देखनी है। सर रिजेक्ट क्यों हुए, क्या पता उसने 17.5 का क्रेडिट तो नहीं लिख लिया था, तो वो भी आपको इस बार देखने को मिल सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू डिस्कस इज, सर आपकी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, आपको डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को देखना पड़ेगा, वो किस नेचर की है। अनिल जी कह रहे हैं व्हाट अबाउट रिकवरी ऑफ कार इंस्टॉलमेंट? अनिल जी अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है उस केस में आप ध्यान से समझिए, आप क्या कहते हैं मैं गाड़ी उसको दिला रहा हूं, मैं उससे रिकवर कर रहा हूं ईएमआई, उसमें अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एग्रीमेंट का पार्ट है तो उसको नहीं ट्रीट किया जाएगा सर। या फिर उसमें प्योर एजेंसी सेटिस्फाई होगी, आप सीधा मात्र यहां से कलेक्ट कर रहे हैं वहां डिपॉजिट कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन आप कोई चीज प्रोक्योर करते हैं जैसे कैंटीन सर्विसेज, वो आपके नाम पे बिल होता है और आप कहते हैं भैया 200 रुपए की थाली है, 50 रुपए में ले ले, तू रोज के 50 रुपए दिया कर और खाना खा लिया कर। इन सच अ केस दैट will be considered as a supply sir. Director remuneration is a recent advancement for all of us sir. Director remuneration में उसने बोला अगर आपका TDS 192 सेक्शन में कटता है इनकम टैक्स के, तो इन सच अ केस आपको उस पे जीएसटी नहीं देखना, इट इज अ शेड्यूल 3 आइटम। उसने क्या बोला है, उसने लास्ट चीज ये बोली है सर, अगर ये 194 जे में होता है इनकम टैक्स के, उस केस में आपको इसे जीएसटी आरसीएम में डिपॉजिट करना होगा। सर वेयर आई एम स्टक राइट नाउ इज, जहां मैं अटका हुआ हूं, मैं कहता हूं सर 194 आई के अंदर अगर एक डायरेक्टर ने अपनी प्लेस रेंट पे दे रखी है आपको, तो मुझे बताइए क्या उस केस में आरसीएम या जीएसटी की इंप्लीकेशन आएगी? यस और नो, यस और नो सर, इतना बता दीजिए सर प्लीज। मैंने आपसे बोला कि भाई 192 में अगर इनकम टैक्स के टीडीएस कट रहा है तो नहीं, ओके
अनुज जी कह रहे हैं 194C अट्रैक्ट जीएसटी। ओके, अर्पित जी कह रहे हैं यस। सर ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर मेरा मानना यह है आपको दो कैपेसिटी चेक करनी पड़ेगी सर। अगर वो डायरेक्टर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको अपना घर दे देता है सर, तो उस केस में उसने डायरेक्टर की कोई सर्विसेज नहीं दी आपको। इन दैट केस द क्वेश्चनेबल फैक्ट इज देन वी हैव नो अनरजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम एग्जिस्टिंग इन जीएसटी, तो वो नहीं लगता अभी। ठीक है, 9 सबसेक्शन 4 के अंदर नहीं लगेगा। हाउएवर अगर आप इसको ये मानते हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं डायरेक्टर की कैपेसिटी में उसको दे रहा है, इन सच अ केस मेरे लिए ऐसा हो सकता है कि आरसीएम ट्रिगर हो जाए। तो ये चीज अभी भी टू वे आपको व्यूज मिलेंगे इस पे। However, now director remuneration is very much clear about this. Last thing you need to discuss and actually check in your GST audit right now is, sir आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना होगा सर, हमने क्या कोई मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कोई कैपिटल एसेट्स तो ट्रांसफर नहीं किए स्टॉक ट्रांसफर की तरह। अगर आपने अपनी ब्रांचेस में कोई ऐसे प्लांट एंड मशीनरी या कुछ ट्रांसफर किए हैं तो यू नीड टू चेक रूल 28 का सेकंड प्रोवाइजो, और साथ ही साथ आपको चेक करना होगा सेक्शन 18 सबसेक्शन 6। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 को भी आपको साथ में चेक करना होगा दैट प्रॉपर वैल्यूएशन हैज बीन डन और नॉट, क्या आपकी प्रॉपर वैल्यूएशन हुई है या नहीं हुई। सर यहां तक मेरा आज का कंटेंट आप लोगों को मैं डिलीवर कर पाया। However, soon मैं ब्रांच से रिक्वेस्ट करूंगा, I will get a chance कि मैं आपके साथ केस वाइज डिस्कशंस कर पाऊं। Till now, I open the query session for 5 minutes if branch allows, sir. Definitely, sir. Where to show amendment? अनंत जी पूछ रहे हैं where to show amendment in export और taxable. सर आप इसको अमेंडमेंट आपने कौन सी करी है, एक्सपोर्ट को टैक्सेबल में डाला है? मान के चल रहा हूं सर, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अमेंडमेंट किस पोर्टल पे करूं या अमेंडमेंट कहां करूं, तो आपने 18-19 की अमेंडमेंट सर आप अब अगर एनुअल रिटर्न में करना चाहते हैं तो एनुअल रिटर्न में करिए, टेबल नंबर 4 के अंदर, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनवॉइस टेबल नंबर 4 में आपको सारी अमेंडमेंट करिए सर। ठीक है सर। मनीष जी कह रहे हैं ट्रांस 1 एक बार टच कर दो। मनीष जी ट्रांस 1 की अगर मैं बात करूं तो मैं पक्का से एक 34 पेज का पॉलिसी शेयर करूंगा ब्रांच के साथ सर। सर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा देयर इज नो स्कोप दैट द डिपार्टमेंट थिंक्स ऑफ गिविंग यू द ट्रांस क्रेडिट सर। वो नहीं चाहते आपको क्रेडिट देना, वो आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे सर। सो वो चीज मैं मान के चल रहा हूं, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। दे आर वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड कि ना दें क्रेडिट आपको। ठीक है। रमेश जी कह रहे हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस इफ द डायरेक्टर हैज गिवन। अच्छा आप कह रहे हैं आनंद जी पहले नॉट एंटर्ड इन, तो उसको आप सर टेबल नंबर 4 में डाल देंगे सर। ठीक है इस बार की। रमेश जी कह रहे हैं व्हाट आर द इम्प्लीकेशन इफ डायरेक्टर हैज गिवन रेंट फ्री अकोमोडेशन। सर रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में आपका अगर तो मान चलिए वो अनरिलेटेड पार्टी तो नहीं है, रिलेटेड पार्टी है, उसने आपको सप्लाई किया, उसने आपको घर दिया, उस केस में आपको वैल्यूएशन करनी होती। वैल्यूएशन कब करनी होती? जब टैक्सेबिलिटी चार्ज करनी होती। अगर आपको टैक्सेबिलिटी नहीं बोल रहा मैं आरसीएम की, तो आपको क्यों करनी है सर? ठीक है, तो उस केस में इंप्लीकेशंस नहीं आएंगे। हाउएवर अगर आप कहते हैं वो डायरेक्टर कैपेसिटी में दे रहा है, उस केस में आरसीएम आएगा, फिर वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है सर। नोटिस पे रिकवरी फॉल्स अंडर जीएसटी 100% रीमा जी नोटिस पे रिकवरी फॉल करती है। हाउएवर इस पे एक डिस्प्यूटेड व्यू आ चुका है लोगों का। वो ये कहते हैं कि जब से शेड्यूल 2 को बाहर किया है सप्लाई की डेफिनेशन से, उसने कहा सप्लाई को सिर्फ ये बताएगा कौन सी है, तो सर वो ये कह सकते हैं कि उसमें कोई चीज सप्लाई नहीं की गई एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय की तरफ से, यू कैन टेक अ व्यू कि उस पर टैक्स नहीं चार्ज होगा। ठीक है, यू कैन टेक अ व्यू उस पर चार्ज नहीं होगा 100%, बट माई व्यू इज कि आप उस पर जमा कर दें तो बेटर है। ठीक है। वेदर इनवॉइस आर अवेलेबल टू चेंज इन 2020, यस अभी हो रहे हैं चेंज, बट उसका लीगल इफेक्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता अनिल जी, पोर्टल पे हो रहा है सर। रीमा जी हाँ आपने एम्प्लॉय से लिया। प्रताप जी कहने कैन वी गेट द इनपुट टैक्स रेट 100%। प्रताप जी आप आज पे करिए, आज लीजिए और इंटरेस्ट दीजिए बस उसके ऊपर। शिखा जी कह रही है B2B सेल एंटर्ड इन देन कैन बी अमेंडेड नाउ। नो शिखा जी मैं वही आपसे कह रहा हूँ, अमेंडमेंट अलाउड तो है रिटर्न में, हाउएवर
उसका लीगल इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा वो सोचने वाली बात है। आप दिखाने के लिए उसको सामने वाले को कर सकती है। माई सजेशन इज टू डू इट इन एनुअल रिटर्न ऑल्सो। एनुअल रिटर्न में उसका इम्प्लीकेशन भी ठीक कर देंगे साथ साथ। आनंद जी कह रहे हैं अर्लर 1819 शोन एज 5 लाख अमेंडेड 920 7 लाख। टैक्स इम्प्लीकेशन अगर आनंद जी, अच्छा एक्सपोर्ट इनवॉइस है, विद पेमेंट है, विदाउट पेमेंट है, ये भी बता दीजिए आनंद जी। अगर मान के चलिए विद पेमेंट है तो 2 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। अगर विदाउट पेमेंट है तो आप अमेंडमेंट तो कर देंगे सर, विदाउट पेमेंट के अंदर आपको रिफंड अप्लाई करना होता है। वहां पर रिफंड में डिपार्टमेंट शायद आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि आपने विदाउट पेमेंट में, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, उस केस में आपका वो शायद डिनायल भी कर दे कि भाई इसने टाइमली इसको अमेंड नहीं किया, तो वहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। हाउएवर आप दिखा सकते हैं कि मैंने अमेंड कर दिया है, तो आप उसका टैक्स इम्प्लीकेशन ले सकते हैं, क्योंकि टैक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर उसमें। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की टर्नओवर उसी बेसिस पे डिसाइड होती है सर। वहां पर आप जब टर्नओवर का फॉर्मूला लगाते हैं तो टोटल टर्नओवर तो आपकी 5 लाख को कैलकुलेट करके लिखोगे या 7 लाख को। आप 7 लाख लिखोगे तो जीएसटीआर 1 में आपकी 5 लाख दिख रही होगी उस महीने में, तो वहां वो आपका रिफंड क्वेश्चनेबल हो जाएगा। क्यों? लेकिन आज आप रिफंड अप्लाई करने लगोगे तो आप अपील में जाके शायद इसको क्लेम कर सकते हो, बट सर फर्स्ट अथॉरिटी पे ये शायद आपका रिफंड प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा सर। आई बिलीव सर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तनु जी, गिरीश सर, दिलीप जी, शिखा मैम। अच्छा चलिए एक बार अपना आई बिलीव अगर कुछ आपको ऐसा भी हो कि बाद में पढ़ते पढ़ते कुछ और क्वेश्चन आ जाए माइंड में, तो काइंडली नोट डाउन माय कॉन्टैक्ट नंबर सर। इफ यू वांट टू नोट डाउन माय कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन नोट इट डाउन। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8447 8447 137 367 8447 137 367. If I can be of any help regarding GST, you can call me anytime. If I can respond to it, it would be my pleasure. सर GST रिलेटेड क्या होता है आप कभी कभी घर जाके पढ़ेंगे, आपका मन कर सकता है और कोई डाउट आए, you feel free to ask me, contact me anytime. Sir, I'll try to address all of your queries. जी तनु जी। गिरीश जी, Right, sir. Should we end the webinar? दिलीप जी आप हैं यहाँ पे? Dilip sir, are you there? I've unmuted you. गिरीश जी का मुझे लगता है सिग्नल चले गए हैं ना? नहीं sir, Dilip ji connected है, but he's not responsive. ओके, गिरीश जी का? Girish sir is there with us. गिरीश सर नहीं है, बाकी और कोई अवेलेबल नहीं है? Girish sir, are you there? He was just here. I think. नो इशू केशव जी। आई थिंक नव्य जी सभी अपने पार्टिसिपेंट्स की सबकी क्वेरीज भी सॉल्व हो गई है, और अभी गिरीश जी शायद कनेक्ट हो रहे हैं। गिरीश जी का कनेक्शन चला गया था अभी। सॉरी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ सर, आपके आवाज आ गए। आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ, so Navya, as usual it was a very helpful session. I'll say it is always pleasure to listen to you. It is always what I'll say, एक बार दिमाग खोल देते हो कि हाँ कुछ और भी है इसमें बहुत। GST is something that we get into depths and we realize that there is still a lot to learn. That's why we always call you, and we are always honored to have you with us. I, on behalf of Gautam Budh Nagar branch, thank you very much. As usual, you have spared your time, and I'd say Navya has never said a no to us. That's the love we have with him. Thank you, Navya. Thanks everyone for the participation. Special thanks to Atul sir, our regional council member from our city only, and my colleagues in the committee, and of course the participants and the branch who have helped this program to happen. Thanks everyone. Tanuji, if you give permission, shall we conclude the webinar? Yeah, please Keshav ji, conclude the
Thank you. Thank you very much, sir. Thanks Thank you. everyone for the you. participation. Thank you. Thank you. Thank you very much.